नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा कहाँ? आपके साथ। जी हाँ, हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वंदे मातरम प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज तो साहब ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये नूरा कुश्ती नहीं है। ये साफ हो गया दिस इज नॉट अ फिक्स्ड मैच। ये भी तय हो गया कि अब अजीत दादा पवार के अंदर जितनी भड़ास थी, जितना गुस्सा था, उन्होंने आज निकाल दिया, और छगन भुजबल साहब ने भी निकाल दिया। और साथ में और तो और छोड़िए, प्रफुल्ल पटेल साहब, मतलब he himself has called himself Sharad Pawar shadow. He says that one of these days he's going to write a book. Why are they threatening that old man? And he says the book will be not only a bestseller, it will diverge such a lot of things, such a lot of things that nobody knew about. I would love to read it. I really would love to read it. Right from the time of Enron to the merger of Indian Airlines and Air India, and how many aircraft did we order at that time, which were never delivered? 200, 300, 400, which we paid for. Some aircrafts were on wet lease and it was not flying, it was just lying idle, Still lying idle, some of them. Yes, you remember the union leaders had come and met us. Yes. And they were explaining to you that why have you taken it, we don't have the pilots, and it's just lying on the tarmac, on the rear bay, and we are paying rent also for that. We were paying rent also, and then what is more, at least they charged us much more because we started to cannibalize some of the parts from them to replace the parts in the fleet which was actually operational. So much so that, in fact, if you remember, towards the end of the UPA-2, Mr. Prafull Patel was relieved of the civil aviation portfolio. I mean, that would be a very interesting book indeed. I would love to read it. And Prafull is a very dear friend, by the way. And for Prafull Patel to do this, the provocation must have been really terrible, Pradeep. I mean, I mean, I didn't see this. I mean, as you told us just before the program started, you said Mr. Pawar has done these things so many times. Yes. Talking something, doing something that he has crossed all limits. And for anybody, and now he's not the old Sharad Pawar that people could take him very seriously. Now Ajit Pawar and the rest all got together and said enough is enough. They've all grown up. The kids have grown up. And even though they've lost their hair, they've got white beards like me. And Ajit Pawar has he says right from 2004 I've been suppressed. I think NCP had more numbers then in 2004. Yes, they did. So instead of making him the CM, he was the most wanted contender to be CM. Mr. Pawar did the flip-flop, took the Deputy Chief Minister post and took a ministerial berth in the center. I mean, yes. So he believes that he has been the most suppressed, the most oppressed because of his Kaka's, moody politics, the way he does it. But then Pawar is Pawar, he does it the way he wants. 2004, where everybody expected Mr. Sushil Kumar Shinde to become CM, and if you remember, I think Vilasrao Deshmukh was made CM. Exactly. Well, anyway, 2004, 2009, one of the time NCP had more numbers. NCP had more numbers than the Congress. Yes. Absolutely, you're right. It was 2004. 2004, yes. It was 2004. It was the second election after the formation of the NCP. It was formed in 1999, and now, of course, in 2004. And at the moment, with us from the BJP, we have our old, very articulate, very knowledgeable, very balanced and very objective friend, Mr. Ali Daruwala. Daruwala Sahab, namaskar. Thank you, Rajiv, for speaking so highly about me. Well, you are. I mean, you're always a pleasure to talk to. I mean, you're so very, very well balanced. You're so objective, and I've never seen you ever run down anybody or criticize anybody at a personal level. You've never done that, and that's fantastic, by the way. And by the way, some good news. I don't know whether you've read that. You know, Morgan Stanley, Standard & Poor, Fitch, and a couple of other guys have actually said that India is going to grow on an annualized rate of growth, which we will know in 2024. The projection is India will grow at between 7.2% and 7.5%, which is fantastic. Phenomenal. These numbers are really phenomenal. Which is fantastic because everybody expected India would grow in the third quarter at about
5.5%, 5.5%. But India surpassed all expectations, and the Indian growth story went up to 6.1% according to one figure, 6.5% according to the government figures. But it's over 6%, which is fantastic, by the way, which is unbelievable. These numbers are absolutely unbelievable. I mean, what accounts for this? Mr. Daruwala, please. Mr. Daruwala, can you hear me, sir? Yeah, I'm with you. So these numbers that we are talking about are astronomical figures, never seen in whichever government in the previous times. Yes. But what I'm trying to put over here across is these numbers have not come overnight. It has not come because of some magic or something. There is hard work. The Honorable Prime Minister, his Council of Ministers have toiled day and night. He has seen non-performing people have been asked to go home. Seats have been evacuated. Age has been the factor. And if you have not performed and if the figures are not matching, you are going to go home. Let it be anybody. This is the tight-fisted Honorable Narendra Modi ji's style of functioning. If you do not perform, you go home, and that is for everybody. Even a smallest worker like me, if I'm not well read, if I'm not abreast and I take things lightly, I will be asked to go home. Is when you run an organization or a country with such determination and dedication, is only then we can produce such numbers. Now, coming back to facts and figures, like what we have been talking about, is this government has not given useless subsidies on things like petrol, diesel. The full country was crying. The prices have gone down in the international market. Why aren't you passing on these subsidies to the common people? Where the Prime Minister did not bend down, he did not budge. He said, no, this money, whatever 10, 15 rupees extra, which we are charging, which we are telling you we are charging, we're going to use it for flagship programs. You need to have a minister with this determination who says, no, I'm not going to bend down. This money is going in for flagship programs, and if you cannot afford it, you use the public transport. Just by giving knee-jerk reaction, you use the public transport. He made the public transport strong. He got the facts on the ground, and then he stated this statement. You saw the metro work in Nagpur, in Maharashtra, in Bombay, everywhere. It's only then he made a statement like, no, petrol will not be sold at a cheaper cost because this money is used for development programs. One thing that everybody must be knowing, in COVID, the price of crude had gone to $20 per barrel. Even then, in India, we were selling petrol at 100 rupees. Everybody cried foul as to you're making money, you're putting the money inside. And with great confidence, I can tell you on this channel that 70, 80 rupees, the profit that we made, the total money went in for funding the COVID vaccination program, which was an ambitious program. And the Prime Minister paid for the initial doses, for the medical treatment in the jumbo COVID centers. This is how you run a country, not by taking loans, going to the IMF, asking with a begging bowl. This is how you run a country self-sufficiently. This is called discipline in finance and disciplines in planning. This is what the minister and our Prime Minister has done, Rajiv sir. And not only that, but the other thing which is by the way great news is that the Ministry of Commerce has done very well. I mean, the exports have really picked up. The trade ratio, which always used to be always used to be against us, has really come down to a very, very large extent. That is fantastic. That is absolutely fantastic. And over here, I must congratulate my friend Piyush Goyal for the kind of work he's done. By the way, Indian annual growth rate is projected at 7.2%, not 8.2%. I hope it is 8.2%. It is not. Can we change that, please? It's 7.2%. Rajiv, you've got a black tongue. It might become 8.2. Double digit. Double digit growth. Because last time it was, I'll tell you the real, if you use COVID as a base year, the last year of COVID as a base year, and if you look at 2022, the growth rate was actually 9.5%. So correct. It almost touched 10, if I'm not mistaken. Yes, it did. So all I'm saying, and right now, for example, we are already a 4 trillion economy. India is a 4.1 trillion economy, and very soon, I think by the end of 2023 or the beginning of 2024, 5 trillion. I don't know whether we'll actually touch 5 trillion or not. That I hope you're right. But we will actually be able to overtake Germany as the 4th largest economy in the world.
On that, there is no doubt at all. By April or May next year, India is projected to overtake Germany as the 4th largest economy in the world. And that, by the way, is phenomenal. We have Number just... 3 is what we are targeting, Rajiv sir and Pradeep sir. Yes, we are. But that number 3 will come at around, to overtake Japan is not so easy. We will become the number 3 economy at, somewhere around 2027 or 2026. It will take that long because Rajiv, so much of growth does not Pradeep take place sir, so Rajiv quickly. sir, one Yeah. thing we'd like to mention on your channel is Yes. we have come to number 4 from 67 when Honorable Prime Minister took over. Our ranking in the top 100 was 67. To jump from 67 to number 4 is not a easy task. This due credit goes to this and only single-handed Narendra Modi government. This is Mr. fantastic. Daruwala, the BJP slogans are continuous. Amrit Kal, Nau Saal, Be-Misal. You blame the Congress, Loot Kal. You call them Vinash Kal. Now the latest is that Char Pidi Congress ka or Ek Akela Modi. Now your new slogan, and you say Tushtikaran ka Rajniti. Narendra Modi ji is always blaming the Congress for Tushtikaran. This kind of, they says, I gave you triple talaq. I abolished triple talaq. I made the Muslim woman feel better. And 100%, Rajiv yeah. Gandhi overturned the Shah Banu case. Verdict of the Supreme Yes, Court. verdict of the Supreme Court. He says, I will not interfere in the affairs of any community. Now you got the Uniform Civil Code. Now, how do you see this? This is very, considering the fact that we are coming, the BJP is coming with Uniform Civil Code. Now, Mr. Modi has evoked the Shah Banu matter, what Rajiv Gandhi has, overturned, and he's saying BJP justified and got appreciation from all the Islamic countries when you banished triple talaq. Can you elaborate? You have been very, very frank about your opinions about triple talaq. Now, Shah Banu is being compared, and now you got Uniform Civil Code, Mr. Daruwala. Yeah, I'd like to make very clear, and it's going to be a remarkable statement, and it can be a viral statement. Under Uniform Civil Code, triple talaq is a separate bill which is dealt with the Muslim wedding and the entire process of giving a talaq, marrying, remarrying, not marrying, whatever that thing is. But in the Uniform Civil Code, marriage has been kept out. Any religion, especially the Muslims, should know that under UCC, marriage and the acts relevant are in a separate bill, and it's got nothing to do with Uniform Civil Code. So Muslims can be rest assured under this act, under this bill, which is going to come into the monsoon parliament, Muslims are rest assured marriages have been left and not touched. There's a different act which has been dealing with this and which has been passed 2 years back, which our Honorable Prime Minister said. So this can be a breaking viral news. That is, well, I don't really know, but yeah, but then as far as marriage is concerned, marriage law, etc., that's a separate issue altogether. But the only thing is, in terms of inheritance, in terms of what a person can inherit from, say, a father, a mother, or a husband, that Uniform Civil Code, I'm sure, will be dealing with all that. But the fact covering is, that, yeah, about marriages which people were worried about has been left alone in all religions. But Daruwala sir, why would they be worried? I want to ask you, why would they be worried about laws related to marriage? Because, exactly. Well, why? I mean, yes, Rajiv. If yes, Rajiv. I'll tell you why if they are there is a worried civil, and why they are scared. No, just hang on a minute. This is for our viewers. Under the Marriages Act, Civil Marriages Act, per se, an Indian citizen is not allowed more than one wife. Let's be very clear. So why would the Muslims be worried? Do they want to have 4 wives? I would like to know, sir. Daruwala sir. Yeah, can you repeat the question? Sorry, Rajiv. I asked you, why would the Muslims be worried about the marriage portion of the Uniform Civil Code? Why would they be worried about that? Coming to that, I would like to elaborate, and I would like to be very clear on this particular issue, because in the masjids and the imams and the maulanas are saying that apna haq mara jayega and all this humbug that has been going on. So to set the record right, marriages has not been touched under Uniform Civil Code, not because they want to marry twice or want to marry thrice or whatever of that sort, because and only the reason because it is not in the Sharia law, it is in the Quran, and something that is in the Quran, Honorable Prime
Minister is not interested in touching and even meddling with the laws of the religion. A. And B, whatever is in the Sharia, I would like to ask through your channel to this Maulanas and to this Imam, where is the book of Sharia? Show me the book of Sharia and I will listen to you. Sharia is just interpretation made by fools and by clowns and not written by the most respected Reverend Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, and in any event, you've got 4 different schools of Islamic thought. So you have 4 different interpretations even within the Sharia. Exactly. So it all depends. So it all depends upon which one are you following. Are you following the Hanbali system or the Ahmadiyya or whichever system you're following? I mean, this is like, you know quite a lot. This is like absolutely crazy. And I'm shocked, very frankly speaking, that this debate is going on even now in the 21st century. Why should a woman be subjected to her husband having a second wife? I mean, come on. This is crazy. This is absolutely crazy. You can't allow that. No civilized society should be, should allow that. Mr. Daruwala. Correct, Rajiv sir. This is totally debatable, but as of now, under the Uniform Civil Code Act, marriages have been left out, and in due course of time, come on. This is a breakthrough. In 70 years, it did not happen. It is happening in the 75th year in the Amrit Kal. More good rules are going to roll out. They're going to follow. So let's have patience. This thing, no one dreamt of touching it also. And over here, the Prime Minister is not bothered whether they come in power or we don't come in power. What has been promised will be implemented no matter what are the consequences. We are going to go head on and we are going to bring in the discipline in the nation. Mr. Daruwala, Mr. Mallikarjun Kharge, the Indian National Congress president, reminds Mr. Modi, he says, your dialogue, bahut hui महंगाई की मार, अच्छे दिन आने वाले हैं. He says, कौन से अच्छे दिन? You have not been able to control inflation, price rise, unemployment and farmers' issues. Tur dal, chini, doodh, namak, aloo, pyaz, tomato. That was what he said 2 days back. And yesterday he came with nimbu, hari mirch, adrak, dhania, lasoon, padwal. He says everything is up. Everything. Mr. Daruwala, you can't control inflation. You can't control price rise. That is Mr. Mallikarjun Kharge's charge on you, sir. Pradeep sir, this exactly shows his level of thought, his level of understanding, and his length of doing politics. He's stuck to kanda, pyaz, aloo, and lasan. Over here, Modi ji is gone. We have reached the space, and they are still stuck to that kanda, lasun, pyaz, and adrak. Over here, the people are earning, and their spending power is going up. I don't know why he wants everything at that 10 rupees rate when he was working, and this Vikas and this Mehngai ka maar is become Buddha. I am saying this law and this not law, I would say this narrative has become Buddha. Now I think they should grow up. When was in their government that things were cheap and now it is expensive? It's really a wrong narrative. I think his imagination is just stuck to 10, 20 rupees. He's not looking at the higher side and the larger side. If the money is coming, it is going to the agriculturist. Why is he sad? The agriculturist should tell him, अगर ये चीज महंगा है तो पैसा हम ही को आ रहा है, थोड़ी गवर्नमेंट को जा रहा है. तो इसी फार्मर्स जैसे आपकी बार किसान सरकार, अगर ये किसान सरकार ऐसी आती है तो रेट ये तो 10 रुपए 5 रुपए कर देंगे. I better think the agriculturists think about voting to them before the 2024 election. Right. I remember when we were very young, I was in Delhi. I still remember when the prices of mutton increased from 8 rupees 50 paisa to 10 rupees, there was a strike. I still remember. That was a long time ago. That was during the 60s. But at that time, if you remember, the Prime Minister's salary used to be 5,000. And 1,000 rupees used to be huge at that Exactly. time. Everybody's spending power has gone up. Yeah, but the only thing is, Mr. Daruwala, you will have to admit that as far as the price rise is concerned, it does have a very emotive impact on people, irrespective of whatever you do. Whether you have the NCP now with you or whether you don't have them with you, now they are of course with you now. You have the NCP, the BJP and the SHIV, and all three of you are running this three-pronged government. The fact is, price rise is one thing that you really have to look at, because you mentioned the fact that the agriculturists should be very happy. They're not, because the price of tomatoes, which has gone up to 130, it was 200 rupees by the way 2 weeks ago, is now come down to 130. The farmer is not getting anything. All of it is going to the middleman. I like your answer on that, sir. Please go ahead. Exactly. In fact, you answered the question for me itself, Rajiv sir.
It is all going to the middleman. This is what exactly in the Farmers Bill, Honorable Prime Minister wanted. The direct mandi, the agriculturists come and they sell their produce themselves. But no, they did not let it happen. All this mafia of the Punjab and Karnataka and Kerala did not let this happen. You know why? Because this 210 and 80 and 90, you know where the money is going. This is what the Prime Minister wanted, that the farmers have the privilege, they have the freedom to sell their own produce at their own price and at their own place. This did not happen. Had this bill come, then you would know where the money is going. There would have been a competitive market. It had already come, so it wouldn't turn into a law. I wish the farm laws had not been repealed, very frankly speaking, because the farm laws really talked about that. And as we discussed just the other day also, you were not here, very unfortunately, you know. But rightfully speaking, the farm laws, they could have been tweaked a little bit, but there was no need to withdraw them. So, do you think the farm laws are coming back? Rajiv sir, one sec. I'd like to put one on record. I'm so sorry I'm interrupting you. No, please go After the farm bill was repealed, this, I don't know, I have to take the name with respect. The Honorable Supreme Court, 1 week after that, comes out and says the farm law was good and it should have been passed. Why didn't do it before the farm law was repealed? Means how hypocrite and how thick-skinned crocodile are you? Like, it was really shameful. The Supreme Court had to say that this farm bill was good. But why didn't they say it before? One day, Daruwala Sahab, all of us will have a discussion on the manner in which the judiciary has not been taking swift action on so many cases. The Ram Janmabhoomi case is one of them. It dragged on and on and on and had to come up now only because of the pressure put in by the Modi Rajiv, government. I'm not scared. You know who are the people sitting in the power and why are they letting the government interfere? We all know, and I'm not scared. They're all from what school of thoughts we all know. With all due respect to them, you know, I think they get good brains. The BJP calls itself the torchbearers of democracy. Mr. Modi, the torchbearer of democracy. Right. But you know, the action, as Kejriwal says, is totally dictatorial, autocratic, and totalitarian. Now you are, he says, now in the future only Mr. Modi and the governors and the LGs are going to function. There's no need of state governments. That is what Mr. Modi is going to do, and after 2024, that is what is going to happen. Because what he says, what happened in Delhi, the ordinance against the state government, then the governor of Tamil Nadu, he goes ahead and writes a letter to dismiss the minister Senthil, who Stalin was not putting out of the cabinet, and then no local body elections in probably entire Maharashtra. So are you really going to finish all this democratic and federal system that our constitution always talk proudly about? Mr. Daruwala, is the end of democracy after 2024? Pradeepji, answering your question in number wise, in serial wise, number one, what Honorable Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal ji said, that this democracy is at stake. Let me tell you one thing, and let me tell you with lot of responsibility, Modi ji is not epitome of democracy. The office that is running can be called the temple of democracy to begin with. He doesn't understand. Our autocracy is what he's doing. The government treasury is what he's making empty, not our prime minister. And anyway, look at the law and order in Punjab, in Delhi, in Karnataka, and Kerala. Can you trust these people with our security? What happened in Punjab? The people landed up right to the capital. The drones are falling straight inside. Means how can you cannot trust these people? Are they of any integrity? We cannot let our security But law and order is not with the administration Delhi in these government, people's sir. hand. But law and order is not with the Delhi government, sir. Law and order. Yeah, that's what I'm saying. How can you trust? Can anybody trust law and order with Arvind Kejriwal? Then we establish where the funding is coming from. Ab ki baar, Modi tere tukde hazar. This is the philosophy these people are doing, and you're going to give our security in this people's hand. I'm telling you, Arvind Kejriwal is heading to disaster, and all the people who voted for him are all going to land up with a mental state of mind. But they're not going to be in proper state of mind. Daruwala Sahab, there was a 5-judge constitutional bench which ruled on the separation of powers in Delhi, where it said that the Lieutenant Governor will be responsible for land, Lieutenant Governor will be responsible for law and order, and Lieutenant Governor will be responsible for Delhi Police. Rest, including transfers and postings of IAS officers, etc., will be with the elected government in Delhi. This particular judgment
of a 5-judge constitutional bench of the Supreme Court was overturned by an ordinance brought in by the Modi cabinet. Do you think that's fair? Do you think that's fair, sir? No, it's not fair. I endorse it. What was done is totally right. This bench, and with due respect, I don't want to hurt anybody's sentiments. You can just track it and you can see which parliament they are sitting, what they are going and making statements. What are they talking about democracy? What are they talking about the prime minister? Are they entitled to do this to begin with in the first place? And who are they to tell us how to run the administration? Why don't they come into politics and do it themselves if they are so good? Supreme Court got thousands and thousands of cases pending. They've left that and they're working till 3 and 4 in the night on passing this ordinance. They're passing these bills which are not even in the interest of the nation. Why? Who are these people? I'm asking on this channel to this honorable people who are, I don't know, my blood boils, and we all know it's not, the day is not far when this collegium system will be scrapped and it will be abolished. And that is the day when this country will reach the mark and the promise that the BJP government has made. Really, the system is totally crap, and these people sitting over there are from a different school of thoughts. I do not know where they come from. Are they running on the British legacy? sir, But I'm very open and blunt about it. So, in your opinion, as the Chief Justice Chandrachud asked, who headed that 5-judge bench, why don't you simply go back to the old system in Delhi? Why do you need to have an assembly, an elected assembly? Go back. Let the Lieutenant Governor run Delhi in the way he used to. Why did you need to give statehood to Delhi, which itself is not complete statehood, by the way. It's half a state and half a union territory. Go right back to it being a union territory. Why have a state government which has no powers? Mr. Daruwala. Exactly, in due course with the election and with the Janta Janardan Janadesh, we will do it. It is the people who will vote and they will put this act and this things together. Just let's wait. It's too fast. This is the problem with the Modi government. In 9 years, people are expecting things to happen which did not happen in last 60 to 70 years. Give us some time. We have to go with the mandate of the parliament. We will do everything. I am finished. Because I'll tell you, right from the time of Mr. Madan Lal Khurana, dear friend of mine, no longer there, Vijay Kumar Malhotra Sahab, Kedarnath Sani Sahab, all these people had agitated for complete statehood for Delhi. These are all stalwarts of the Bharatiya Janata Sangh, later of the BJP. In fact, it is the BJP's campaign for full statehood for Delhi which brought about statehood for Delhi. In fact, if I remember, Sushma Swaraj was among the people, and Arun Jaitley, who had campaigned very, very hard for statehood for Delhi. So are you saying they were all wrong? See, things have changed, times have changed, this foreign interest has changed. Because the Aam Aadmi Party has won again and again and again. No, not at all, not at all. I will not mingle with my words, and definitely, Rajiv sir, Pradeep sir, you know, inserting words in my mouth is not done, and I do not fall prey to this kind of thing. This government that is there right now is totally untrustworthy. They have made the coffers empty, and you cannot give a state with crores and crores of people as citizens to people who have integrity, which the integrity over here is totally penetrated. We have seen time and again, and links have been established. On the basis of those links and the basis of that anti-government, anti-India movement, you cannot trust these people. When we have a respectable, credible government, I am sure what my leaders have done, they were not wrong in doing so. If there is a credible government, we were right, and we will give it to a credible government, not to a government who is. So why hasn't Mr. Kejriwal been arrested? If he has contact with anti-nationals. I'm not lawyer. You'll see in due course of time. So according to you, Mr. Kejriwal will also be arrested? No, if there are links and if there are things that are proven, he will go behind bars. I told you, nobody's above law. No, me. Nobody's above law over here. Right. If things are proven, they will go behind bars. Mr. Daruwala, Mallikarjun Kharge again tells the Indian National Congress, points out to you that your propaganda is, we are the 4 pillars of our government is nationalism, Rashtravad, national security,
the development, appeasement of none, vagara, vagara. But he says, what have you done with the armed forces? What national security are you talking about? In the armed forces, you have not recruited 9 lakh armed personnel, which are 9 lakh vacancies you have not filled. How is our border safe? If there's an attack, how are you going to face it? So the whole credible thing that you're talking about, Rashtravad and national security, falls down to the ground to ashes when the very fact that you have not recruited people so essential where the armed forces are concerned. How can you explain to the people what Mr. Mallikarjun Kharge has charged you, sir? Yes, Pradeep ji, I'd like to ask you a question to Mallikarjun Kharge ji in the parliament. When their defense minister broke down, he started crying. I said, if my country is taken over today, we will lose. My army jawans don't have shoes, they don't have proper equipment, they do not have ammunition. Your defense minister cried and it was in the media all over. What happened to you then? Where were you hiding? Were you infant or insane? What happened to you then? And now you're expecting, but let me tell on this channel with great responsibility, our army is all-time best equipped. We can take any forces. The countries that used to show us eyes are got their tail between their legs. This is the preparedness of our army, and there are lots of defense secrets which cannot be discussed on an open television. Let there be any storm, and India will tackle the storm. We can discuss them, sir. There is no problem. But over here, just to clarify for our viewers, No, I'm saying we are well equipped. We are all-time best. Our jawans, more than anything, their morale is so high that a handful of jawans Mr. Daruwala, pushed back the Chinese. A handful of jawans pushed back the Chinese. These things have never happened to a man whose party said even the grass doesn't grow in this highlands. Those people have no moral to teach us about the army and its preparedness. So let's not get into that. But the fact remains, in 1967. In the Chola and Nathula passes, our boys, handful of them, recaptured both the passes from the Chinese. Yes. Absolutely true. But I would like to tell you another thing. The figure of 9 lakh that Mr. Kharge has mentioned is absolutely true. But please do remember, during the years of the UPA government, this is for our viewers, UPA 1 and UPA 2, all recruitment to army had stopped. All had stopped. So this, by the way, is the leftover that Mr. Modi has had to deal with now. And today it is also true that for the very first time, at least 2.5 lakh Indian jawans have actually been given Kevlar bulletproof vests, which by the way had not been sanctioned by that same gentleman that you were talking about, Mr. Anthony, who started crying in Parliament. But the fact remains, today's it is the first time that the Indian Army, Indian Air Force and the Indian Navy has not had to haggle with clerks, head clerks and other bureaucrats in South Block and in North Block just to be able to get the sanction that they require for new equipment, which by the way is fabulous, absolutely fantastic. And even though complete OROP may not have come, it has not come. However, everybody's pension for ex-servicemen has increased by over 70%. On that, there is no doubt at all. Yes, we are very happy. Yes, Mr. Daruwala, please. That was just for the information of our viewers. But Mr. Daruwala, chalte, what do you think of Mr. Ajit Dada Pawar? He is now with you. The 70,000 crore scam. Uska kya hua, sir? Gone. Correct, Rajiv sir. I'm not saying that the inquiry is closed and he's got a clean sheet on your television. I'll say with responsibility, inquiry is on. And again, I can tell you with responsibility, let it be Ajit Dada Pawar or any other leader for that instance. Or Hassan Musharraf. Anybody, yes. No, I'll tell you. See, the investigation is on, and these agencies that have been investigating are very neutral agencies. They have been handpicked by our Honorable Prime Minister. And if they find anything, mind you, on your channel, I'll be the first person to announce that there has been discrepancy, trails have been established, and the heads will roll. Answering to your question in the first instance. But to these allegations these people made that Bharatiya Janata Party has become a washing machine. This statement came 2 hours after Honorable Ajit Pawarji sworn in as the Deputy CM. Yes. My question to these people is, 2 hours back, they were screaming on your screen that injustice has been done, our people are innocent, action has been taken on innocent people. Why are you doing this? You're using ED and CBI for your whims and fancies.
And after 2 hours, they are saying that these people are corrupt, they need to be punished, there has been involved in scams. I said, how can you have a double standard? 2 hours back, you're begging for pardon, and after 2 hours, you are begging for conviction. Like, how can you be a double standard? I would like to ask them, what is it you make up your mind? Is Ajit Pawar sir clean or is he guilty? But what a move, what a fantastic move, by the way. You've rattled the opposition. The only opposition that you've got left now is the Congress. That's it. And by the way, I think the Congress should be very, very happy at what you've done. Very frankly speaking, But they are the only guys who can actually fight you. No, but the BJP is totally doing very well, and the Congress also is consolidating all its votes, Mr. Daruwala. You know, they are talking about Mahila, they are talking about Dalit, they are talking about OBC, they are talking about SC, ST, they are talking about minorities, Alpasankyak. So they are consolidating the vote. The Karnataka model, they have destroyed Janata Dal. Here, the regional parties have no option, either join the BJP or get rattled by the Congress, because the Congress is consolidating all its votes. All its original votes. Yes, they were coming back. So how do you see the future politics? It's only going to be BJP versus the Congress, Mr. Daruwala, in 2024. Yeah, I'm just telling you, and in a straight go, I'll tell you, I don't see Congress as a threat, and I do not see the existence of the party anymore. With 1-2 MPs from the state and a few MLAs, I don't think they hold any ground in front of us. But at the same time, I'd like to tell you, even if there's a single MP and 5 MLAs, let me tell you, there are 2 to 3 lakh voters behind him who has elected him. So there is due respect for these elected representatives. Though they are not from our party, they are elected representatives. The interest of the citizens in that province has to be taken care of. And Ajit Pawar, sir, along with his 42 MLAs, wanted welfare for his people. He said, if sitting in opposition, I cannot get justice to my voters. To get justice to his voters, he joined the party. Though they were of different origin, and Sharad Pawarji said time and again that I will never go with Shiv Sena and I'll never go with BJP. But just your ego, keep your ego to the side and think about the voters, the crores and crores of voters, what happens to their constituency. You cannot deprive them of their rights. To get their thing, like the OBC thing, I'll tell you, Ajit Pawar was a great leader he is a good leader, and Chhagan Bhujbal ji has got the mandate of the Samaj in of the Maharashtrians, and they need to be given their due respect. And these people joining our party, they are people who they are representing is going to get their due respect. And today in the morning, the Maratha reservation in the education has already been rolled out. Right. That's fantastic. Right. Thank you so much, Mr. Daruwala. Great pleasure, as usual, talking to you. Really wonderful to have you on the show, sir. Wonderful. Namaskar, sir, and Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Wonderful. So, Pradeep ji, as far as Mr. Ajit Dada Pawar is concerned, the investigation against him continues. So says the BJP. I wonder. I'm concerned about the MVA vote share, sir. वो vote share है कि vote share टूट गया? Let's ask Mr. Wagmare. Yes. Wagmare साहब, नमस्कार. Namaste, sir. Namaste. How are you? अरे, today you're looking very relaxed. बात first class relax लग रहा है. लग रहा है कि बड़े खुश हैं आप. Relaxed. नहीं सर, एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ दिल्ली से बॉम्बे आने के लिए. दिल्ली से I'm on the बॉम्बे. way to the airport. Wonderful. You're Yes. you're on the way to the Delhi airport. Sir, बताएं. No. From the yeah. तो दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं सर, वहाँ से आएंगे ना आप यहाँ पे. सर, Yes, sir. तो Yes, सर, sir. Yes. तो सर ये बताएं ना कि मतलब आज अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इकट्ठे, मतलब क्या अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे सर इस पे आप? I am at a loss for words. Perhaps you can help me out here. Sir, देखिए, एकनाथ शिंदे is already in a down stage because he feels that they betrayed him, BJP betrayed him. So he is on a losing side. His MLAs are totally on a downside. Now, Devendra Fadnavis himself, because this deal has been done from the top. Yes. So Devendra Fadnavis himself, he is on a downside. Devendra Fadnavis, when the Eknath Shinde became CM, तो देवेंद्र फडणवीस का एक कद छोटा किया था. अभी अजीत पवार जी को उनके बाजू में लेके आके उनका कद उससे और छोटा कर दिया. तो ही इज अपसेट. नाउ अनदर थिंग इज BJP cadre
because Eknath Shinde's 40 MLA come and switch the side. So the BJP cadre on that 40 seats, they was upset. Now the Rashtrapati side, another 35 MLAs or 32 MLAs will come. So the people who are contesting against Rashtrapati so many years from those constituency, they are upset. So in this total scenario, except Modi, I think nobody is happy. Everybody is unhappy, and the Congress. So Mr. Modi and Congress is happy. Otherwise, everybody is upset and सब दुखी आत्मा हो गई है. वो दुखी आत्मा खाली कैमरे के ऊपर और सबके सामने बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश है, हम बहुत खुश है. लेकिन ये सब दुखी आत्माएं हैं. वाघमारे साहब, मगर आपका जो परसेंटेज है एमवीए का जो परसेंटेज है, जो शरद पवार साहब बोलते थे कि अनबीटेबल परसेंटेज ऑफ वोट शेयर 50% के आसपास, ये 50% अब रह गया क्या? बिकॉज उद्धव ठाकरे जी के पूरे ग्रुप यहाँ पर चले गए, अब शरद पवार साहब के पूरे, अजित पवार और भुजबल साहब पूरे ओबीसी वोट, सुनील तटकरे वगैरह सब लेके यहाँ चले गए. तो व्हाट हैपेंस टू द 48 to 52% वोट शेयर ऑफ एमवीए? इज इट देयर और इज इट नॉट देयर? बिकॉज वी सी एवरीथिंग ड्विंडलिंग, बिकॉज पवार साहब जैसे स्टॉलवर्ट हिल गया है, उनके पास सिर्फ 16 एमएलए, बाकी सब इस तरफ आ गया. हाउ डू यू सी इट सर, वाघमारे साहब? Sir, regarding the vote share, if you look into the vote share scenario, the Congress has their vote share intact. In fact, after Karnataka and the situation happening in a total country and all oppositions are coming together, the Congress vote share is going to be increased. That is number one. Shiv Sena, Mr. Uddhav Balasaheb Thackeray, they have a very, very huge amount of sympathy with them. The way the Eknath Shinde and the people have left them, so that sympathy stays. And now the Rashtrapati Congress, because of Mr. Sharad Pawar, such an old man and a stalwart, and he is still fighting, and he is fighting against the BJP. So that sympathy is going to stay with Rashtrapati. See, in Rashtrapati, what is going to happen? If you look into the stalwart, that is the people who took the oath of minister. If you leave that 8 to 10 people and 2-3 people from the MLAs, if you leave them, none other MLA can come and win the election without Sharad Pawar or without the secular votes. Now here the very interesting part. The Rashtrapati Congress form, they are formed from the Congress. Yes. So the voters in a Rashtrapati, they are not like fundamental Hinduism or very right wing side of people. So what is going to happen to vote for BJP directly? See, the Shiv Sena is one step below the BJP in that Hindutva thinks as the country thinks. So what happened to directly vote to BJP from Rashtrapati side? It is going to be very difficult. So the Rashtrapati voters either will come back to Rashtrapati and they will come back to Congress. Yes. But it will not move to BJP. Now another thing, the similar way in Maharashtra, last so many years that we are fighting against BJP, the Congress and Rashtrapati is fighting against BJP. They are our number one enemy politically in Maharashtra. So what happened? The voting percentage and the people with Congress and Rashtrapati, they are against BJP, and the BJP people are also against the Congress and Rashtrapati. So what is going to happen if you are going to tell them to vote for Rashtrapati people? They are not going to listen. That won't happen. It is not going to happen. They That's will what they will do. So what is going to happen here in this scenario? If the BJP is the biggest loser, the second loser is Shinde, and the third loser is Rashtrapati. But Because you are gained. you are fighting on the same food. Yes. And the plate is one, and 3 people wanted to get their stomach filled. It is not going to happen. That's right. That is quite correct. So- देखिए यहाँ पर सर प्रदीप जी एक सेकंड, एक छोटी सी बात है, इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ.
वाघमरे साहब, एक छोटी सी खबर आई है और ये कहा गया है, और ये मणिपुर से खबर बोलिए। है, और ये मणिपुर से खबर है सर। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद इमीडिएटली थिंग्स हैव कूल डाउन, ऐसा कहा गया है सर। ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड हीलिंग टच इन मणिपुर, मतलब कि आपकी मोहब्बत की दुकान काम कर रही है, कहने का मतलब ये हुआ। राजू वाघमरे साहब। यस सर, यस सर। ये सर कहा नहीं जा रहा है, आप देख रहे हो कि मणिपुर में आफ्टर राहुल गांधी जी विजिट Yes. सब चीज काम डाउन हो गई है। Yes. उनको ये लग रहा है कि कोई तो भी उनके साथ खड़ा है, कि जो उनकी मदद कर सकता है, उनके लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और एक जो हीलिंग टच जो है, आपने राइट वर्ड यूज किया बजाज सर, वो हीलिंग टच राहुल जी के पास है। भारत जोड़ो में वो हीलिंग टच अपने को हर कदम पे सभी को दिखाई दिया। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वो सब जिस तरीके से राहुल जी को मिलते थे, राहुल जी के साथ बातें करते थे, तो उससे ये पता चलता था कि वो हीलिंग टच है। तो आज मणिपुर की स्थिति जो है वो पूरी तरह से काम डाउन हो रही है। पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड दे फील दैट somebody is there with them. Now Wonderful. this is the duty of प्राइम मिनिस्टर, बट प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं था। वो मणिपुर जल रहा था, प्राइम मिनिस्टर आराम से खाना खा रहे थे अमेरिका के अंदर। तो ये वो नीरो जैसी बात हो गई। रोम जल रहा था, नीरो फिडल बजा रहा था। यहाँ मणिपुर चल रहा था, हमारे मोदी साहब खाना खा रहे थे। तो ये सेम कैटेगरी के लोग हैं, जनता की परवाह नहीं है। हमारे साथ बीजेपी का नया उन्होंने एक पॉलिसी निकाला है, जो स्लोगन निकाला है कि 4 पीढ़ी कांग्रेस का और एक अकेला मोदी सब पे भारी। तो उनका कहना है कि देखो व्हाट मिस्टर मोदी हैज डन फॉर द गुड फॉर द पूरे देश के लिए। बोले ट्रिपल तलाक उन्होंने अबॉलिश कर दिया, मुस्लिम वुमन को एक फ्रीडम दे दी है जो सप्रेशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के बाद अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। फिर याद दिला दिया लोगों को कि राजीव गांधी ने उल्टा किया था, शाह बानो केस को उन्होंने ओवरटर्न किया था। बोले कि nobody can interfere in the personal law of the Muslims. Now this is what he called तुष्टिकरण, appeasement politics, and Mr. Modi believes that the appeasement politics of the Congress has destroyed the country. देश में जहर फैला दिया और देश को बांटा है सर। तो how do you see it? ट्रिपल तलाक, यूसीसी और शाह बानो आप लोग ओवरटर्न करते हो, हाउ डू यू सी इट सर? सर, आई थिंक द मोदी जी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनको एक काम करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी को ट्यूशन लगानी पड़ेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप इस तरीके की बातें करते हो, क्या अपीसमेंट की बात करते हो? मुस्लिम पर्सनल, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम ये लॉ है, सिख के लिए अलग लॉ है, तो और स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहला पढ़ो। ट्रिपल तलाक अगर आपने यहाँ बंद किया, लेकिन जो लोग अपने रिलीजन से चलते हैं, जो लोग शरीयत से चलते हैं, वो क्या आपके कोर्ट में आने वाले नहीं है कि ट्रिपल तलाक से हमको तलाक दिया, हमको मंजूर नहीं। जो मानने वाले हैं वो तो शरीयत से मान के उसी तरीके से चलेंगे। और इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, हमें यह देखना है कि ड्राफ्ट क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का होने वाला है जी। आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उनको टैक्स नहीं है, वो उनके बिजनेस को टैक्स नहीं है, उनके जितने भी मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, HUF में, उनको सब सहूलत है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का होने वाला है। बाकी क्या होने वाला है? आज मुस्लिम पब्लिक को लगता है कि ये लोग सब बीजेपी वाले फैलाते हैं कि मुस्लिम भाई अभी 4 शादी नहीं कर सकते। अरे भाई, अभी 4 शादी क्या, एक शादी करने वाले को भी सोचना पड़ रहा है कि शादी करे या नहीं करे, या बच्चे पैदा करे या नहीं करे। इतनी महंगाई हो गई है, नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, सब दाम बढ़ गए हैं। तो भाई अकेला ही रहना पसंद है। तो लोग तो कोई भी, ना मुस्लिम ना कोई हिंदू, एक से ज्यादा शादी करने वाला है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप ऐसी क्या चीज लेके आने वाले हो? क्योंकि सभी चीजें तो है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो स्पेशल को पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप उसके बारे में क्या बोलते हो? उसका कुछ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में सभी धर्म के लोगों को तो शादी करने का अधिकार हो जाता है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, इनका ड्राफ्ट क्या है? ये खाली हवा की बातें हैं कि हम ये करके लेके आ रहे हैं। अरे बट ऑलरेडी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सब है। एक्चुअली एक ही कायदा है ना, सभी को एक ही वोटिंग का अधिकार है, सभी को संपत्ति करने का अधिकार है, सभी को शादी करने का, अपने रिलीजन को बढ़ावा देने का अधिकार है। अगर डिवोर्स की बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपने शादी किया है, आप उसके तहत डिवोर्स तो आप कोर्ट में जाके कोई भी रिलीजन का हो आप ले सकते हो। तो ये क्या ऐसा कौन सा चांद लेके आने वाले हैं? जी सर, ये सर, सब हवा की बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, बीजेपी वालों को क्लास लगानी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इतना बढ़िया बनाया है, तो उसको पढ़ो। आपको ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। भागवने साहब, दैट इज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, अब हाल ही में आली दारोवाला साहब हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट गोइंग टू टच मुस्लिम मैरिजेस एट ऑल। मैरिज के बारे में इसमें कुछ नहीं आने वाला, ऐसा भी कहा उन्होंने। खैर वो अलग बात हो गई, वी विल सी, ड्राफ्ट पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हाल ही में भोपाल में आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एनसीपी का जो स्कैम है, शरद पवार, सुप्रिया सुले वगैरह वगैरह वगैरह, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम है सर, 70,000 करोड़। तो वो 70,000 करोड़ का स्कैम अब क्या होगा सर? अब तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए अजीत दादा पवार साहब। सर ये बीजेपी वालों को झूठ बोलने का क्लासेस दिया जाता है, इनके प्रवक्ता को भी, कि झूठ कैसे बोला जाता है। वो बीजेपी में आने के बाद पहला शर्त ये है टर्म कि भाई झूठ बोलने को आता है क्या, और कितना डिग्री आप झूठ बोलते हो। मैं उसका कारण बताता हूं। देखिए अभी तक जितने भी लोगों के ऊपर ईडी के केसेस थे, मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूं। प्रताप सरनाईक वो चले गए, उनका केस बंद हो गया। आदरणीय नारायण राव जी राणे साहब वो चले गए, उनके केसेस बंद हो गए। जितने भी लोग ये बीजेपी में चले गए उनके केसेस उसी वक्त बंद हो गए। फिर ये लोग क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं है। ये लोग बोलते हैं अरे हमने केस बंद किधर किया? अरे केस बंद नहीं किया तो जिसको अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, अभी आपके अरेस्ट का वारंट गया किधर? तो ये जो बातें कर रहे हो दारू वाला साहब का मैं सुन रहा था, अभी हंसने को भी आ रहा है। इनको इतना भी कैसे झूठ बोल सकते हैं पब्लिक के सामने कि केस कोई बंद नहीं किया? अरे कैसे केस बंद नहीं करोगे आप? अभी एक भी ये इंसान के ऊपर ना ईडी उसको बुलाएगी बातें करने के लिए, ना ईडी उनको अरेस्ट करेगी, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है ममता बनर्जी के जो लोग शारदा फंड चिट घोटाले में थे, जो लोग आज उनके पास बीजेपी में गए, इंक्वायरी बंद हो गई। पूरे देश का आप देखो इतिहास, जिसने भी पार्टी बदली उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी और ईडी की केस वहां ही थम गई। तो इसका मतलब क्या है? और ये वापस बोलते हो तो 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने 2 दिन पहले बोला, और बोला कि मैं सबको अंदर डालूंगा। अभी मोदी जी में हिम्मत है क्या? हम चैलेंज करते हैं कांग्रेस वाले कि अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ सचमुच रहते थे तो अजीत पवार जी के ऊपर जो आपने आरोप लगाया, आप उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते थे, या आप उनको आपके पार्टी में नहीं लेके आते थे, तो अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी के पास और भाजपा के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बातें करने का। जनता उनकी कोई बातें सुनने वाली जी, क्योंकि ये सत्ता के लिए कहां भी और किधर भी जा सकते हैं। आज मोदी जी ने खुद साबित कर दिया, तो बाकी लोगों की बात छोड़ो, अभी मोदी जी ने ही साबित किया कि भाई मुझे 70,000 करोड़ का घोटाला चलता है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली मेरे को लोकसभा में आप चुन के लेके आओ,
मेरे को 70,000 करोड़ क्या, आप 7 लाख करोड़ का घोटाला करो, मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो। प्रदीप जी, वाघमारे साहब, अमित शाह 2 दिन पहले राजस्थान में थे, गहलोत सरकार को उन्होंने कहा गहलोत सरकार 3D सरकार है, 3D से यानी दंगा कराने वाला सरकार, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करने वाला सरकार और दलित अत्याचार करने वाला सरकार। दैट इज व्हाट अमित शाह टॉक्ड अबाउट गहलोत इन द राजस्थान गवर्नमेंट। बोले कन्हैयालाल जिसका गला काटा था, कन्हैयालाल को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, उनको अरेस्ट किया तो सेंट्रल एजेंसी NIA ने अरेस्ट कर लिया। तो ये उनका कहना है नंबर 1 राजस्थान करप्शन में नंबर 1 है उनका कहना। तो ये करप्शन, राजस्थान आपका एक रोल मॉडल है, जस्ट लाइक कर्नाटका, राजस्थान इज अ रोल मॉडल एंड ही कॉल्स यू एंटी दलित। और उन्हें कहा कि अगर बैकवर्ड कास्ट को किसी ने कुछ किया है तो मोदी साहब ने किया। बोले कि ना कांग्रेस ने किया, ना मायावती ने किया, ना अखिलेश ने किया। बैकवर्ड कास्ट आयोग सिर्फ मोदी साहब ने एस्टेब्लिश किया बैकवर्ड कास्ट को न्याय दिलाने के लिए। सर, तो हाउ डू यू सी इट, हाउ इज इट गोइंग टू फिट विद द पीपल? अरे सर, अमित शाह जी सत्ता से SC/ST कमीशन इज देयर इन दिस कंट्री, तो अमित शाह कहाँ की बातें कर रहे हैं भाई? और अगर इतनी बातें करनी है तो पहला योगी साहब का उत्तर प्रदेश में देखो, दलितों के ऊपर अत्याचार कैसे हुए, कैसे वो लड़की के शव जलाए दिए गए, कैसे शाहबानो ये बिल्किस बानो के केस के अंदर वो 7 आरोपियों को 8 आरोप छोड़ दिया, आपने उसका सत्कार किया और उसको छोड़ने की जो दरखास्त की थी वो तो गुजरात गवर्नमेंट ने की थी। और दलितों के बारे में जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं भाजपाई, वो क्या दलितों की बात करते हैं? मनुस्मृति को लेके जिनको राज्य चलाना है, जो मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले, तो मनुस्मृति में 2 बातें हैं, दलित तो एकदम नीचे के पैर के तले की जमीन है दलित, और उसके साथ साथ पैर के तले की जमीन है वो महिला है। तो वो मनुस्मृति को जो मानने वाले हैं, जो महिलाओं को उपभोग्य वस्तु समझते हैं मनुस्मृति के अंदर, और ये मनुस्मृति को सर पे चढ़ा के बात करने वाले जो लोग हैं, जो चातुर्वर्ण को मानते हैं, जो जातीयता को मानते हैं, वो बात करेंगे कि दलितों के खिलाफ कांग्रेस है। सर उन्होंने दलितों की बात नहीं करी थी सर। पब्लिक क्या इतनी पागल है क्या? सर दलितों की बात नहीं हो रही सर। SC/ST कमीशन की जो एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत पहले हुई है। OBC उन्होंने OBC कमीशन की बात करी, बैकवर्ड कास्ट कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस। सर अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन उस वक्त नहीं हुआ था, उसका कारण ये था कि उस वक्त OBC का जो घटक था, उनको जो रिजर्वेशन में जो जी बोलिए परिणाम और उनको जो रिजर्वेशन मिला था वो पूरी तरह से बराबर था। तो अभी ये जो स्थिति बदली है लोगों की, उसकी वजह से ये परेशानी और पोजीशन आ चुकी है, और हर OBC का जो घटक है उसको अलग तरीके से रिजर्वेशन चाहिए। तो नेचुरल सी बात है कि उसके लिए आयोग स्थापन होना और उसके बारे में ध्यान देना सही बात है। अभी उस वक्त अगर आपकी सरकार है तो आपकी सरकार है तो आपने वो काम करना चाहिए। बाकी कांग्रेस ने तो लाखों काम किए हैं, हम कितना चालू करेंगे? But is that really correct? Vaghmare Sahab, is that really correct? Because the Mandal Commission was established only to look into the OBCs, and that came in 1979. ऐसी बात नहीं है। Absolutely. तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन भी जब ही हुआ तभी का इम्प्लीमेंटेशन को सबसे विरोध ज्यादा किसने किया? दंगे क्यों हुए? तो भाजपा ही ने किए, तभी भाजपा अपोजिशन में थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंडल कमीशन लागू करने के लिए विरोध करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो भाजपा थी। बीजेपी। तो भाजपा क्या OBC की बातें करेगी? मंडल कमीशन के लिए जो खून हो गए, जो दंगे हो गए, वो बीजेपी ने किए। तो इनके के लिए कुछ भी बाकी बचा नहीं है, इनके पास कुछ बाकी बचा नहीं है। करप्शन के मामले को लेके जा रहे थे, तो करप्शन में ये अभी मोदी जी ने बता दिया कि करप्शन तो हमारा क्वालिफिकेशन है,
डेप्यूटी सीएम बनाने का, तो वो भी बात इनके हाथ से चली गई, तो अभी ये क्या बातें करेंगे? Right, but congratulations to you. That leaves only the Congress in a very, very strong position indeed. And sir, they're consolidating. Yes, जैसे wonderful. ही ये गड़बड़ यहाँ पर हो गया, आप तो कंसोलिडेट कर रहे हो. आपने वेणुगोपाल जी ने सीधा अंबेडकर जी को फोन किया, बोले आइए हम लोग साथ में काम करेंगे. That's right. तो आप वही पूरे स्टैंड एक तरीका से महिला, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सबको जोड़ने के एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. उसको नाकार नहीं सकते, वो जबरदस्त. And because of that, regional parties are either going to get destroyed, sir, Or they they're will going to join join you. BJP. Or they'll join BJP. Right, sir? No, we will जी, बोलिए सर, बोलिए. we will go with all regional party. We will go with all regional party who are coming with us. We are consolidating Dalit votes. See now, Dalit भी अभी जान चुका है. दलित लीडर अगर सेक्युलरिज्म को छोड़ के अगर बीजेपी के पास दलित लीडर जाते हैं, तो दलित लीडर जाएंगे, लेकिन दलित जनता जो है वो लीडरों के साथ नहीं जाएगी, उनके साथ आएगी, वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगी. अभी वो दलित लीडरों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम जाते हैं भाजपा के पास तो हमारे साथ कितने वोट आने वाले हैं, क्योंकि वोटिंग तो जाने वाला नहीं दलित लीडरों के साथ, क्योंकि अभी दलित भी सुधर गया है, सुशिक्षित हुआ है, उनको समझ आ गई है, उनको पता चल गया है कि भाई इधर जाएंगे ये साइड में तो हमारा नुकसान ही है. अगर हमको रिजर्वेशन एंड अदर फैसिलिटीज और प्रोग्रेसिव ग्रोथ चाहिए तो हमको कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा. तो दलित पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ने वाला है और जुड़ रहा है. Right, Mr. Wagmare, thank you very much for talking to us, sir, and all the very best to you. Have a safe journey, sir. Waiting for you to return to Mumbai. Thank you. And it's raining in You, Mumbai. sir. It's raining in Mumbai. Please Yes, come. here in Delhi also. Delhi क्या बात also है? raining little bit. Just now it is raining outside. Wonderful, sir. Wonderful. Wonderful Thank to you, talk sir. to you as always. Thank you. Namaskar and Thank Vande you, Vande Mataram. Mataram. And congratulations. Thank you, sir. Congratulations once again. Thank you, thank you. You've gotten rid of your biggest rivals without having to raise a finger. The BJP has done its job for you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much. So that's why I said कि only two people are happy. One is Mr. Prime Minister Narendra Modi and second is Congress. Wonderful, wonderful. Chaliye, at least you have something in common with Mr. Modi. Sir, you're in Delhi. Is Nana Patole safe for 2024? सर ये फैसला तो हाई कमांड लेती है. मैं तो मामूली सा कार्यकर्ता हूँ सर, छोटा नेता हूँ. I thought you were the high command. But thank you, Mr. Wagmare. Sir, Thank you, sir. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. thank you. Have a safe journey, sir. Thank you very much. Thank you. And that was wonderful. That, by the way, is the only logical conclusion that has come out of the entire thing. Congress has grown stronger because the BJP actually may have played into the hands of the Congress, very frankly speaking. But another way of looking at it, sir, is the Sharad Pawar is considered a Maratha party. Bhujbal said before he left, and the OBC votes which were there along with Sharad Pawar has actually come out from there. Yes. Now, but Wagmare says the leaders, Dalit leaders and OBC leaders can go, but the OBC votes will not go. Now, this will be a test for... In any event, as far as the OBC vote was concerned, let's be very clear, the OBC vote was never with the Congress. The OBC vote was always with the NCP here in Maharashtra. Most OBC votes per se always used to go to the NCP and used to be divided among other parties. The Congress did not have too much of a share of the OBC vote. Right now, that OBC vote, I suspect, will remain with Mr. Thackeray, with Mr. Bhujbal and all the other OBC leaders who have left. And whether that will have, that will be an advantage to the BJP or not, I don't know. If you are having an alliance, sir, if Bhujbal, Thackeray and all the other ministers who have been made ministers will be able to get the BJP, because Mr. Modi is doing a lot of work with the OBCs concerned. But probably they don't have a face in Maharashtra who can very highlight these very issues that Mr. Modi's policies for the OBCs are good. It is for the people, poor, downtrodden and the OBCs.
probably Mr. Bhujbal, Thackeray and all these people can impress. And a joint fight with this Ajit Pawar's NCP might change the vote share. If you notice, nobody's talking about Mr. Shinde anymore. I mean, that is terrible. Now, I think we should be having Mr. Hemant Kamble with us very, very shortly. And he has said that he's only going to talk about Maharashtra politics. He's not going to talk about national politics at all. That's what he says. Do we have Mr. Kamble with us? Not yet. Not yet. All right. So he'll be with us very, very shortly. But the only thing is, the Congress has really consolidated. There is no doubt about it. Rahul Gandhi जी का मणिपुर विजिट ना इट मे बी ए कोइंसिडेंस हो सकता है कि सिर्फ कोइंसिडेंस हो कि उनके जाने के बाद एकदम चीज़ें नीचे आ गई सरकार की पॉलिसी हो केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया हो लेकिन कोइंसिडेंस तो है साहब राहुल गांधी के जाने के बाद मणिपुर शांत हो गया है उसमें कोई दो राय नहीं है वहाँ पर अभी कोई बड़े इंसिडेंट नहीं हुए हैं कोई ज़्यादा वायलेंस नहीं हुई है But the Congress says that one particular community, cookies or the BJP never allowed Rahul Gandhi to be that particular group of people. They are on 40% of the population, and they say the government is trying to stop Mr. Rahul Gandhi. And very sadly, over 200 churches have been burnt in Manipur, which is I find very disturbing. How can you do that? You can't do that. The last time such a thing happened was in Odisha, if you remember. The Kandhamal riots and so many churches that were burnt. That was in 2008, 2009. And then after that was the last time I think that Mr. Naveen Patnaik had an alliance with the BJP. He broke the alliance with the BJP, stood on his own, and ever since then has only been winning on his own. Now, all I'm saying is, how can you attack the religious places of any community? And the Christians per se have been a very, very peaceful community in India. And to attack them in this manner, I think is sad. It is there, as you said, Mr. Modi, the Prime Minister has yet not spoken in a big way about Manipur. He's not spoken at all. Yes, they though had an all-party meeting where all the parties, including the Congress, said, "Where is the Prime Minister?" It was headed by Mr. Amit Shah. Yes, he said, they all said, "Where is the Prime Minister?" Gee. And so, Prime Minister's discreet silence, we don't understand why. Probably he's got some game plan up his sleeve, whatever is going to happen. But then, if there's disturbance in the area, we have seen all prime ministers till now, they all reacted in some way or the other. Probably Mr. Modi. But if you see at the way the BJP also is working it out, I mean, we were always talking about the MVA going to be a threat for BJP and all the earlier surveys that saying is gone. 40 to 48, that's over. 40 out of 48 will be with the MVA. And as on today, the MVA is gone. Now, which means, rightfully speaking, if you look at it, the NCP, BJP and the Shinde group will have to work out the kind of understanding that was there in the MVA. MVA में अगर आप देखें एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भाई शिवसेना का ये रोल रहेगा, उद्धव सेना का ये रोल रहेगा, कांग्रेस का ये रोल रहेगा और एनसीपी का ये रोल रहेगा. ये भूमिका रहेगी इन तीनों की. अब यहाँ पर क्या ये भूमिकाएं जो हैं तीन, will they be able to work it out among themselves? Why were they able to do it in the MVA is, if you notice, the Shiv Sena had 56 MLAs. Mr. Pawar had about 53 or 54, and the Congress had 48, if I'm not mistaken. Or was it 45? I'm not sure. So they were all more or less, they all had more or less the same percentage of vote, if you look at it. 16.5%, 17%, 16%, that way. Here, you've got a behemoth in the shape of the BJP. BJP is huge as compared to the other two parties. भारतीय जनता पार्टी के आज भी 103 एमएलए हैं साहब असेंबली में. So, will Mr. Ajit Dada Pawar and the NCP defer to the BJP as things go along? That is the most. So I think, sir, the BJP calculation must have been that whatever Mr. Shinde, though he has come this side, the vote share has not come this side. I mean, that was a proper calculation which all the by-elections after that showed that the sway was not there, the wing swing was not there. So, the best thing that you could do is reduce 17% vote share of Sharad Pawar, which they believed maximum was because the influence of OBCs, that is Bhujbal, Thackeray and all these people. So, that dent, I think it could be a master stroke what BJP has done. It could be a master stroke or it could be suicidal, one of the two. So, at least one thing is certain, that earlier projections of 40 out of 48 for the MVA, that projection is all gone for a toss.
because let's ask Hemant Kamble ji. yes, sir. Hemant Kamble ji of the MNS. Namaskar, sir. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. हेमंत कामले जी, आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि आज सिर्फ आप महाराष्ट्र की राजनीति पर ही बात करेंगे, ऐसा आपने कहा. महाराष्ट्र की राजनीति. यस जी. यस यस. तो अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है उसका क्या विश्लेषण देते हैं जरा, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए. जो हमें रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि जहां तक आपका एनालिसिस होता है, आपका जो विश्लेषण होता है बहुत सटीक होता है, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होता है. सर जरा बताएं प्लीज. नहीं, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की आज बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में जो सर्जिकल स्ट्राइक अजित पवार ने किया है जी एनसीपी पर, तो मैं तो समझता हूं कि भाई एक अच्छी फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है, बहुत अच्छी कास्टिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, और ये पिक्चर सुपरहिट बनेगी. क्या बात है सर, वंडरफुल. क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिन जो तमाशा, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा भाई, तमाशा जो चल रहा है ना महाराष्ट्र में, तो इसका फायदा किसको होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. कौन किस फायदे के लिए कहां पर गया है और किस तरह से स्क्रिप्ट में किस किस को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देखेगा. क्योंकि देखिए कैसे है ना कि शरद पवार जैसे मंजे हुए खिलाड़ी और उनके साथी प्रफुल्ल पटेल जो साये की तरह उनसे पिछले 30-35 सालों से है, आज वो निकल गए. छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पटेल, ये प्रोमिनेंट नेम थे. बाकी लोगों से मुझे इतनी ये नहीं थी, लेकिन ये प्रोमिनेंट नेम जो थे वो जिस तरह से अजित पवार साहब के साथ चले गए, और जो स्टेटमेंट्स शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जी की तरफ से आए, तो वो सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है. अब तक तो ये लग रहा है स्क्रिप्टेड है, लेकिन शरद पवार की राजनीति ना तो महाराष्ट्र समझ पाया, ना तो देश में बहुत से लोग समझ पाते हैं. तो इसलिए मुझे तो अब तक तो मैं ये कहता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड है. अभी भी आप यही कहेंगे कि ये स्क्रिप्टेड है? यस, मुझे अभी भी लगता है. क्योंकि देखिए ये स्क्रिप्टेड इसके लिए कहता हूं मैं कि सत्ता में जाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस और अपोजिशन में रहेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस. जिस तरह से दोनों ने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जो बात कही है, आज अजित दादा पवार ने जो शरद पवार जी के लिए कही है, या तो फिर सुप्रिया सुले जी का आज का स्पीच देखिए, तो कहीं ना कहीं जो पिक्चर बनाया जाएगा वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हर जगह पर छाई रहेगी, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो आपके पावर में जाके अजित पवार जो कमान संभालेंगे. तो ये इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन 2024 तक आपको जरूर दिखेंगे. सो इन इफेक्ट व्हाट यू आर रियली सेइंग इज, हेमंत कामले साहब, कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सारी एनसीपी ने ऑक्यूपाई कर ली, नॉन बीजेपी स्पेस जो है. देखिए, आप देखिए 3 दिन से तो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ एनसीपी दिख रही है सर. सिर्फ एनसीपी दिख रहे हैं. तो ये मेरा ये अनुमान है कि ये जो है स्क्रिप्टेड है, और इसका फायदा सिर्फ एनसीपी और एनसीपी को होगा. बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा. बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन के कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जमा कर, देखिए मैं राजीव जी और आपको एक बात बताता हूं कि मैंने कितनी बार ये कैलकुलेशन बताया 2019 के, कि 1,41,00,000 भारतीय जनता पार्टी की वोट थे, 90 लाख शिवसेना के थे, 92 लाख थे एनसीपी के, और 87 लाख थे कांग्रेस के. जी. अब 1.41 प्लस 92 करिए, तो जो वोट शेयर लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ फिर शिवसेना से एकनाथ शिंदे जाएंगे 2,33 लाख. या 2,33 लाख. यस. तो जो 48 सीट यहाँ पर है उसमें से करीबन 42 सीट्स तो बीजेपी और शिवसेना लास्ट टाइम लेके गई थी, बराबर है, 43 सीट्स. तो अब ये जो है ना, ये कैलकुलेशन बहुत मुझे कहीं ना कहीं तो सटीक लग रहा है, लेकिन ये 2024 का ही कैलकुलेशन है.
किसी भी तरह से देखिए, अब हम देश की राजनीति की बात करेंगे तो कर्नाटका से लेके नीचे केरला तक आपको दिखता है कि बीजेपी को कहीं पर स्टैंड नहीं मिल रहा है। जी नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़े बहुत है, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार में हालत खस्ता है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की, राजस्थान में भी वही हाल है। जी। रही बात गुजरात और फिर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो 48 सीट है, तो ये जो कैलकुलेशन इनकी जो चल रही है ना अभी, जो 200, ये मजबूत सरकार से कहीं ना कहीं मजबूर सरकार पर लेके आए। ये जो उनका जो चल रहा था ना एजेंडा, शरद पवार और बाकी जो अपोजिशन एक साथ बैठे थे, तो ये मजबूत सरकार से मजबूर सरकार पर आ गए ऑलरेडी। इलेक्शन के 2024 के इलेक्शन के पहले ही मजबूत सरकार से मजबूर सरकार पर आ गए, और इसलिए ये गठजोड़ चल रहा है। तो इसमें जो शिंदे साहब का क्या एनसीपी हुआ सर? को, जी सॉरी, जी जी बताएं सर, प्लीज आप खत्म करें। सॉरी, आई थॉट यू हैड फिनिश्ड। जी जी बताएं। नहीं, जिस तरह से जिस करप्ट पार्टी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, जिस पार्टी का उल्लेख करते थे जी बीजेपी, किरीट सोमैया जैसे लोग जो एनसीपी के सब घोटाले बाहर निकाल रहे थे, या बीजेपी के इतने सारे कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता इतने सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उनका कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन हो गया होगा कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे आज उनके साथ सरकार बनानी पड़ रही है। और सरकार को कोई धोखा तो नहीं था, सरकार अच्छी तरह चल रही थी, तो ये बीच में ही आपको एनसीपी को साथ में लाने की जरूरत क्या थी? रही बात कि शिंदे के साथ जो 16 लोग थे उनको इसका डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो इसके लिए अगर ये गठजोड़ किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 के लिए गठजोड़ है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगा। हेमंत जी देखो, आपने फंटास्टिक एनालिसिस किया और वोट शेयर ना। आई जस्ट वांट टू नो दैट ये इस एमवीए टुगेदर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस टुगेदर, सर्वे जब चला तो ऐसा लग रहा था कि 48 में से 40 तक एमवीए विल टेक इट। नाउ विद दिस ब्रेकअप, जो 17% आपने गिनाया था कि वोट शेयर ऑफ एनसीपी इन महाराष्ट्र, भुजबल साहब ओबीसी लीडर, तटकरे ओबीसी लीडर, ये सब दिग्गज ओबीसी लीडर है, तो ये 17% में से ये फ्रैक्चर बहुत बड़ा एक इनके साथ ओबीसी वोट भी इस तरफ आ जाएगा, आपको लग रहा है? बीजेपी और अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी शायद उतने वोट, आपने बोला वोट शेयर ले नहीं पाएंगे, बट ये जो भुजबल साहब और तटकरे वगैरह जितने हैं, जितने वोट शेयर ओबीसी के यहां पर लेके आएंगे, तो ये सर्वे अभी लेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, आपको लगता है? ये 40 to 40 आउट ऑफ 48 40 तक एमवीए, तो अभी कितना 50-50 तक हो जाएगा? 24 ओबीसी वोट शेयर इस तरफ आएगा तो नहीं, मेरा कैलकुलेशन है कि ये 32 तक जाएगा, 32-35 तक जा सकता है अगर, क्योंकि क्या है देखिए, ये अगले एक साल में जिस तरह से फंडिंग होगी इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, फिर वो एनसीपी के या जो भी है जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें जो फंडिंग होगी वहां पर जिस तरह से एमएलएज और एमपीज को फंडिंग किया जाएगा और जिस तरह से के काम वहां पर किए जाएंगे, तो इसलिए ये वोट शेयर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि सामने देखिए ना, कांग्रेस है और अब शिवसेना है। अब महाविकास आघाड़ी का जो सबसे बड़ा जो नुकसान किया था शिवसेना का, और उसके बाद दूसरा नुकसान हुआ है एनसीपी का। तो ये दोनों पार्टी के पास जो दिग्गज नेता थे वो सब निकल गए, तो किसी कार्यकर्ता को जाके इन दिग्गजों के साथ लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, और मैन पावर, मसल पावर इसके साथ, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि ये वोट शेयर अब बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। तो सर ये तो सर फिर ये बीजेपी के लिए इसमें नुकसान कैसे हुआ? फिर आपने कहा ना, नहीं, देखिए ना कैसे है कि जिस करप्शन के लिए, जिस करप्शन के खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाई थी, आप देखिए 2009 से लेके 2013 तक बीजेपी ने जो कैंपेन की थी, तो 2004 में इनका इंडिया शाइनिंग फेल हो गया था बीजेपी का, फिर 2009 में भी फिर वो यूपीए वापस आई थी, फिर 2009 से लेके 2013 तक जो इनकी कैंपेनिंग रही वो कोल घोटाला, कोल स्कैम था, कॉमनवेल्थ गेम था, फिर 2G स्कैम था, या फिर निर्भया का हत्याकांड था, या अन्ना का लोकपाल बिल था। ये 5 फैक्टर थे
जो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बहुत कारगर साबित हुए। जी। और फिर मोदी जी को उन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया कि अगला अगली सरकार मोदी, अब की बार मोदी सरकार या जो भी है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन इस तरह से किया था करप्शन के खिलाफ। तो उस करप्शन के खिलाफ प्रोजेक्ट करते करते आज की तारीख में आप क्या देख रहे हो कि जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे उनको सबको आप लेके आए भाजपा में। तो भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना चाहती थी तो ये भ्रष्टाचार युक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी होगी। आप भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे लेकिन भ्रष्टाचार युक्त ये भारतीय जनता पार्टी होगी। तो अब ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो हार्डकोर एक कैडर था वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका है कि क्या यही हमारे तपस्या का फल है। तो इसलिए नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा इसमें। हेमंत जी, हाउ डू यू सी, जिस प्रकार से अजित पवार जी का स्पीच था, अजित पवार जी ने जिस प्रकार से कहा कि 2004 में मैं शायद मुख्यमंत्री बन सकता था बिकॉज एनसीपी के सीट्स ज्यादा था कांग्रेस से, तो जिसका ज्यादा सीट था उनको, मगर काका ने मुझे नहीं बनाना था, सप्रेस करना था, इसलिए चीफ मिनिस्टरशिप कांग्रेस को दे दिया। बोले 2004 में वैसे ही हुआ। 2017 में जैसे उन्होंने कहा कि 5 मीटिंग तटकरे जी, ये प्रफुल्ल पटेल, अजित दादा सब मीटिंग के भेज दिया, बीजेपी से मीटिंग करो इंदौर में, मतलब तो फिर भेज के फिर बोले नहीं नहीं हमको शिवसेना के साथ जाना नहीं, शिवसेना द कम्युनल, जैसे दादा ने कहा, अजित दादा ने कहा। फिर 2019 में भी बोले कि ऐसे करो, 5 मीटिंग हो गया, पोर्टफोलियो डिसाइडेड, पालक मंत्री, एवरीथिंग, कमिश्नर, ये वो हर चीज डिसाइड किया। फिर काका ने विड्रॉ कर दिया, बोला हर जगह मुझे सप्रेस किया, हर चीज में मुझे सप्रेस किया, हर चीज में मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। नो, हाउ डू यू सी दैट वेंट ऑफ फीलिंग्स हेमंत जी ऑफ अजित पवार? नहीं, इसका प्रदीप जी, इसका एक क्या है कि एनालिसिस और इसकी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पिछले 60 सालों में शरद पवार जी ने जिस तरह से मतलब 60 सालों में नहीं, उसमें से भी 92 के बाद राजीव जी के जाने के बाद जो उन्होंने क्लेम किया था प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर 1991 के बाद 91 के बाद, या फिर उसके बाद सोनिया जी के विदेशी मूल पर उन्होंने उंगली उठाई, तो हर बार, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति हो, हर बार शरद पवार जी का एक आपने पहलू देखा होगा कि कमांड हमारे हाथ में रहे, मतलब उनके हाथ में रहे, ये उनका गुण रहा। और इसके लिए शायद इसीलिए वो भारत के पंतप्रधान बन नहीं पाए। ये कमांड हाथ में रखने की जो उनकी जो आदत थी, और ये भी थी कि भाई आप आज अजित पवार खुल के बोले कि भाई 82 की एज में आपको समझ में आना चाहिए कि भाई नए जनरेशन को, नई जनरेशन क्या, आज अजित दादा खुद 60 क्रॉस हो चुके हैं, वो कोई यंग जनरेशन के है ही नहीं। इनके साथ बाकी जो उनकी जो दूसरी जो पीढ़ी है, या भुजबल साहब ऑलरेडी 70 क्रॉस है, 75 के आसपास रहेंगे, तटकरे साहब वो 60 के आसपास रहेंगे, तो अजित पवार जी 60 का, प्रफुल्ल पटेल खुद 70 के आसपास रहेंगे। तो लीड करना है इनकी पार्टी के बाकी लीडर्स को कब करेंगे? तो अगर आपने एक बार रिजाइन किया तो वापस, लेकिन इसके बावजूद आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ये डिस्प्यूटेड है या इसे नहीं, ये शरद पवार जी का परफेक्ट कैलकुलेशन है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये स्क्रिप्टेड है। जिस तरह से ये सीनियर लीडर्स इनको छोड़कर गए ऐसा दिखाता है, वो गए नहीं, उनको छोड़ा गया है। और इसका फायदा 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस को 100% होना है। और दो बात है कि 2 लीडरशिप यहां पर एस्टेब्लिश होने वाले, एक अजित पवार और दूसरी सुप्रिया सुले। जी। By the way, Mr. Ajit Pawar will be 64 on, I think, 28th of July or something like that. He will be 64 years old at that time. No, now I'm remembering his birth date. and Mr. Bhujbal is already 75 years old. So, Yes. so that is the younger generation, which is fantastic, really wonderful. But I see so much of energy in him, which is really and truly fantastic. लेकिन आज की तारीख में जो शरद पवार जी कह रहे हैं कि मैं सारे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा, हर जगह जा रहा हूं, सामने से अजीत दादा पवार भी थ्रेटन कर रहे हैं कि आप दौरा करोगे तो मैं भी करूंगा, तो मतलब ये डू यू थिंक इट्स ऑल वेल प्लान्ड, आपस में बातचीत करके हो रहा है, या मतलब सीम्स डिफिकल्ट? राजीव जी, आप समझ लीजिए कि वहां पर पावर में रहेंगे अजित पवार जी, और अपोजिशन का जो भी स्पेस लेंगे शरद पवार जी, अजित पवार, शरद पवार, सुप्रिया पवार,
ये अगर इधर शरद पवार और सुप्रिया पवार अगर अपोजिशन की स्पेस लेंगे, वहां पर पावर में अजित पवार स्पेस लेंगे, तो आप देख लीजिए कि पिछले 3 दिन में अगर पूरी स्पेस अगर राष्ट्रवादी ने ली है, तो अगर ये माहौल बनेगा तो 24 तक क्या मतलब हालात क्या होंगे? सब जगह आपका राष्ट्रवादी दिखेंगी। पावर में कौन? अजित पवार। उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? शरद कौन पवार। उठाएंगे? शरद पवार। तो स्पेस कौन लेंगे? और दोनों भी प्रोमिनेंट नेम है यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का है, और दूसरा नुकसान किसका होगा सबसे ज्यादा? वो होगा शिवसेना का। जी, तो यहां पर जो मैं सवाल आपसे पहले पूछ रहा था कि शिंदे साहब का क्या होगा सर, आप ये तो बताएं। देखिए, शिंदे साहब मुझे लगता है इंटैक्ट रहेंगे, उनको अभी तो फिलहाल छोड़ेंगे नहीं इलेक्शन तक। ये तीनों जो है, ये तीनों है, ये इनका टारगेट यही है, 48 में से ज्यादा सीट लानी है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद के कैलकुलेशन बहुत अलग होंगे, बहुत अलग होंगे। जहां तक मैंने शायद पिछले इसमें डिबेट में कहा था कि फडणवीस साहब को सेंटर में अच्छी जगह मिलने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए ये कैलकुलेशन परफेक्ट है। विधानसभा के लिए क्या होगा, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए क्या होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनारियो रहेगा कि आगे जो पिक्चर बनेगी वो भी इंटरेस्टिंग ही बनेगी। तो यहाँ पर ये सर बताएं कि मतलब आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन विच मेक्स सेंस। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब शरद पवार जी को छोड़ दें, दिलीप वलसे पाटिल शरद पवार जी को छोड़ दें, मतलब ये कैसे हो सकता है? आई कांट रैप माई हेड अराउंड दिस, हाउ इज इट पॉसिबल? सुनील तटकरे साहब शरद पवार जी को छोड़ दें। चलिए छगन भुजबल, उनकी बैकग्राउंड अलग है, बाकी हर चीज उन्होंने अलग करी, समता परिषद बनाई वगैरह वगैरह, वो मान सकते हैं, लेकिन ये सब लोग शरद पवार जी को छोड़ दें और उनके खिलाफ बोले, ये बहुत ही अजीब लगता है सर। कामले साहब, नहीं तो यही तो परसेप्शन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, कि मैंने कहा ना आपको कि एक पावर में जाएगा जो वहां से फंड्स लेके लोगों को काम करेगी राष्ट्रवादी। अब यहाँ पर तो शिवसेना 1 शिवसेना 2 हो गए, तो कल राष्ट्रवादी 1 2 भी हो सकती है ना, और कल जाके वो मर्ज भी हो सकते हैं। इसके लिए बार बार कहता हूं ये स्क्रिप्टेड है। हेमंत जी, नाना पाटोले ने कहा कि अभी शरद पवार जी, कांग्रेस एंड उद्धव जी, हम लोग सब मिलके वापस पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, कंटिन्यूस मीटिंग लॉन्च करेंगे। मगर कांग्रेस जिस प्रकार से कंसोलिडेशन अपना कर रहे हैं, देखो तुरंत ये सब हो गया। वेणुगोपाल जी प्रकाश अंबेडकर को फोन करते हैं, बोले कि वी शुड मीट एंड वी शुड टॉक अबाउट अलायंस और व्हाटएवर, जो उनके फोन बात। तो कांग्रेस कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और कांग्रेस एकदम चल रहा है, और कांग्रेस जितने मजबूत होता है तो रीजनल पार्टीज उतने खत्म होने ही वाला है, बिकॉज ये वोट शेयर दोनों का सेम ही है। तो अंबेडकर जी को उद्धव से डायरेक्टली ले लेना, और जब मालूम है कि क्राइसिस चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस अपना रवैया आप कैसे देखते हो? कांग्रेस टोटल पॉलिटिक्स ओनली कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स, बाकी उनको मालूम है कि रीजनल पार्टीज मरने वाला है। हाउ डू यू सी इट सर? पहली बात तो आपको भी पता है कि प्रकाश अंबेडकर शरद पवार जी से कितना प्यार करते हैं, वो उनके साथ जाने वाले नहीं है, तो वो एक फैक्टर बाजू में रखिए। लेकिन जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, अगर ये तीनों मिलके महाविकास आघाड़ी अभी भी बनाते हैं और महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन रहेगा? मिस्टर शरद पवार। इनमें सीनियर लीडर्स कौन है? तो मिस्टर शरद पवार जी। कांग्रेस की लीडरशिप कौन है? नाना पटोले या फिर अशोक चव्हाण कौन है? उनमें ऑलरेडी डिस्प्यूटेड, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं कांग्रेस में। यहाँ की महाराष्ट्र की लीडरशिप यहाँ पर वो कायम नहीं कर पा रहे, उसको ये नहीं कर पा रहे, एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। रही बात उद्धव ठाकरे जी, यस मैं अभी भी कहता हूं कि पास कैडर बेस है, लेकिन बहुत सारे लीडर जाने के कारण वो कैडर को लोकल लेवल पर लीडरशिप नहीं मिल रही है, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ शिवसेना भाई उतना ही नुकसान उठाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का होगा, ये बार बार मैं कहता हूं। कामले साहब, एक बड़ी मतलब ये अजीबोगरीब चीज़, ये सवाल है, मुझे मालूम है, मतलब इसका जवाब देना चाहें ना देना चाहें आप वैसे दे ही देंगे। इसके बाद आपने अभी तक जो बात करी उसमें आपने जवाब दे ही दिया है। हाल ही में भोपाल में आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने
इसी एनसीपी को करप्ट पार्टी कहा, शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जी का नाम भी लिया, 70,000 करोड़ के स्कैम की भी बात करी, और ये भी कहा कि ये सब लोग जेल में होंगे। तो हाउ विल द बीजेपी एक्सप्लेन दिस? मतलब भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में कैसे बताएगी? मतलब भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो ये कहा जाता है वही इन्वेस्टिगेशन इज नॉट स्टॉप्ड, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। हमने कब बोला कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई? यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की और उनके अंधभक्तों की। ये कहेंगे ये मास्टर स्ट्रोक है कि हमने अजीत पवार को लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़कर साथ में लेके आए, या शरद पवार जी की कमर तोड़ दी, ये मास्टर स्ट्रोक है। ये इनकी कैंपेन रहेगी कल से। देखिए, मैं करप्शन की, आप 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैंने भी वो स्पीच सुना है नरेंद्र मोदी साहब का, कि आप अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते हो तो वो वोट देंगे आप सुप्रिया सुले को, वो वोट देंगे आप शरद पवार को, वो वोट देंगे आप 70,000 करोड़ के जिनके ऊपर आरोप है अजीत पवार को। तो अब अजीत पवार ही साथ में आए तो क्या वो 70,000 करोड़ का घोटाला छिप गया? इतने सारे चार्जेस आपने लगाए कि सुप्रिया सुले हो, रोहित पवार की बारामती एग्रो की जो इंक्वायरी, वो अभी चालू रहेगी या बंद होगी? बहुत सारे ईडीज के आपके केसेस, फिर सुनील तटकरे हो या फिर छगन भुजबल हो, हसन मुशरिफ, और सबसे बड़े जो फैक्टर हसन मुशरिफ, इनकी तो अभी फ्रेश इंक्वायरी चालू है जी। तो क्या करेंगे सर वहां? दूसरी बात राजीव जी, दूसरी बात, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि 40 एमएलए का जो लेटर उन्होंने राज्यपाल को दिया है, उसे नवाब मलिक का नाम है कि नहीं है? जिन नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के आरोप है, जिस आरोप में वो जेल में है, वो नवाब मलिक उस पर साइन किए हैं कि नहीं किए? अगर किए हैं तो राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र प्रखर राष्ट्रपति के पाठ सिखाने वाले भारतीय जनता पार्टी इसको सहन कर पाएगी? किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और इलेक्शन में इसका हिसाब भी होगा कि आपने जिन पर आपने उंगली उठाई थी, वो नवाब मलिक हो, अजीत पवार, सबको साथ में ले लिए। अब देखना यही है कि नवाब मलिक का उस पर साइन है या नहीं है, उनका नाम है या नहीं है उन 40 में। We haven't got that list as yet. वो लिस्ट अभी तक जग जाहिर नहीं हुई है. It is not a public document yet. I have no idea. But that Critical hospital. But that leaves me again with the question I ask you each time, which means that the only honest leader in the whole of Maharashtra is a man called Raj Thackeray. That's it. The only honest, consistent, sincere leader who is concerned with the welfare of Maharashtra is Raj Thackeray. अब ये लोगों को सोचना है. आपको लगता है कि लोगों की अब आंख खुलेगी? लोगों की आंखें खुलने शुरू हो गई है। अब हम जहां पर हमें बहुत सारे रिप्लाईज आने लगे, सोशल मीडिया पर फोन आने लगे लोगों के जिनका कोई कनेक्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनका कहना है कि अब ये जो कीचड़ है, इसके लिए इस कीचड़ को साफ करने के राज ठाकरे ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, इन सभी का जो कच्चा चिट्ठा है खुल गया है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ सुथरी, पार्टी विद डिफरेंस, इनका टैगलाइन था ना, पार्टी विद डिफरेंस। बट दिस पार्टी इज वेरी डिफरेंट। जब इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, किसी भी हद पर जाएगी। ये महबूबा मुफ्ती के साथ भी हाथ मिलाएंगे, ये इनके अबू आजमी के साथ भी हाथ मिलाएंगे, किसी के साथ भी जाएंगे, और अजित पवार को या शरद पवार उनको कहेंगे करप्ट पार्टी है और उनके साथ हाथ भी मिलाएंगे। तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी बदनामी किसकी हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी की हुई। अजित पवार और उनको तो सभी कहते थे कि भाई ये करप्ट है। शरद पवार जी का नाम सब लोग ने ऐसे ही बदनाम कर दिया था, लेकिन अब उनको ही साथ में लेके सबसे बड़ी बदनामी इन्होंने झेली है। तो मुझे लगता है राज साहब ठाकरे ने जो कहा कि इस कीचड़ से हमें बचना है, भाई ये कीचड़ कर दी है पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, तो आपको मतलब महाराष्ट्र की जनता को एक ऑप्शन मिलता है कि हमारे पर ये कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं है करप्शन का। तो ये ऑप्शन तो खुला है महाराष्ट्र की जनता के लिए। सर चलते चलते आदरणीय सामान्य देवेंद्र फडणवीस जी का क्या होगा सर?
अब तो तो वो फडणवीस साहब ने तो कहा था कि भाई अजीत पवार को बीजेपी में नहीं लेंगे, उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, ना शाश्वत बनाएंगे, ना कुछ। बहुत सारा आपने तो क्लिप देखी होगी, आपके पास भी आई जी होगी, सब जी, क्लिप सबके बहुत पास, वायरल सबके होगी। सबके पास आई। वो क्या है कि अविवाहित रहूंगा वगैरह नहीं वगैरह। अब राजीव जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो 2-3 दिन में एनालिसिस या जो भी मैंने ये किया है कि जहां तक महाराष्ट्र में जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप दिल्ली से आने वाले ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, इसके लिए बड़े नहीं हो पाते। जी फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कहीं ना कहीं जब देवेंद्र फडणवीस ऐसे एज ए पॉलिटिशियन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच बोलूं तो जो कुछ लोग हैं एज ए पॉलिटिशियन इज वेरी गुड, लेकिन जिस तरह से उनको आज फिर वो शिंदे जी को लेने के बाद, शिंदे जी यहाँ पर आने के बाद शिवसेना छोड़कर जो शिवसेना तोड़कर आए, फिर उनको डेप्यूटी सीएम बनाया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आप समझिए कि उनकी मजबूरी क्या होगी। अब यहाँ पर अजीत पवार जी को साथ में लेकर, गवर्नमेंट में साथ में लेकर उनके साथ काम करना है, तो उनकी कितनी मजबूरी होगी। लेकिन एक है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जैसा एक बहुत ही टैलेंटेड जो पॉलिटिशियन है, वो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में होना चाहिए। उनको अगला फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मैं खुद देख रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट के लिए बहुत सुटेबल इंसान है। हेमंत जी, आप कैसे देखते हो, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ कहा कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर 2024। अभी हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस डिले हो रहे हैं कंटिन्यूसली, कहीं 4 साल से नहीं हो रहा, कहीं 1 साल से, कहीं 2 साल से, 3 साल। इट इज नॉट। एंड जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि मिस्टर मोदी एंड गवर्नर्स विल एंड एलजीज will run the entire country, there's no need of local bodies, there's no need of state governments वगैरह। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऑर्डिनेंस भी वहां पर लाए थे, और फिर गवर्नर इन तमिलनाडु डिसमिसेस वन मिनिस्टर, जिस प्रकार से डिसमिस, तो क्या ये 2024 तक आपको लग रहा है उसके बाद एक टोटलिटेरियन तरीके से हर चीज चलेगा? हाउ डू यू सी एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स? प्रदीप जी आपको शायद याद होगा कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले ही राज साहब ठाकरे ने तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है, जो वहां की ममता बनर्जी से मुलाकात की थी जी आदरणीय सोनिया गांधी जी से मुलाकात की थी, और इन सभी को कहा था कि उनको आगाह किया था कि भाई आने वाली जो राजनीति है वो बहुत ही खतरनाक होगी, तो हम सबको एक होकर कहीं ना कहीं इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन तब तो शरद पवार साहब ने ना तो उस पर कोई सकारात्मक प्रतिसाद दिया, ना उद्धव ठाकरे जी ने दिया, ना कांग्रेस की तरफ से आए, ना किसी ने। अब इन पर कहीं ना कहीं गाज पड़ रही है, फिर वो ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी। अब यह कहीं ना कहीं जाकर अगर यही बात अगर 2018 में बननी शुरू होती, तो अब आपको जो पूरे देश की राजनीति कहीं ना कहीं अलग दिखाई देती। उसके लिए ये कुछ चित्र ही अलग होता। एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तो लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी का एंड, यस, हम उसी तरह कहीं ना कहीं तो हमारा मार्गक्रमण हो रहा है। सभी पार्टियां एक ही बार भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर दो और चलाइए मोदी जी देश कैसे चलाते हो। सभी पार्टियां विलीन कर दो भारतीय जनता पार्टी में, हम देखते हैं कि भाई कैसे चलता है देश। डेमोक्रेसी तो ऐसे भी खतरे में लग रही है। हेमंत जी, एक जबरदस्त एक वेव चल रहा है, ये जो महाराष्ट्र का तमाशा चल रहा है। दोनों जो पुराने बाला साहब ठाकरे जी के, आप भी पुराने बाला साहब से जुड़े थे, तो सब लोग का, जितने छोटे छोटे कार्यकर्ता, सबका मन में थे कि दोनों भाई को एक साथ आना चाहिए। अब बहुत हो गया, आप लोग एक साथ आओ और महाराष्ट्र को सुधारो। तो क्या बजाज साहब भी पूछते रहते हैं हमेशा, क्या ये संभव है? अभी आपको लगता है दोनों भाई वापस आएंगे? मुझे एक बात बताइए प्रदीप जी कि ऐसी कौन सी, मतलब भारतीय जो राजनीति में ऐसी कौन सी घटना या कौन सी बात ये नामुमकिन है? नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नहीं। लेकिन हमारे यहाँ से 4 बार पहल हो चुकी है, 4 बार प्रयास हो चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे जी अगर चाहते तो ये देखिए, ये ना, ये अगर राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब अगर एक होकर, इसके लिए किसी गठजोड़ की जरूरत, गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये दोनों भाई साथ में मिलकर किसी दिन चाय भी पिए ना, एक साथ मिलकर चाय पिए तो गठबंधन डिक्लेयर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी अगर, उनकी अगर इच्छा ही नहीं होगी ये सब करने की,
तो हमारी तरफ से हम कितनी बार पहल करेंगे, कितनी बार हमारी तरफ से प्रयास करेंगे। Correct. और जब अगर होना है तो हो जाएगा। हमारे दरवाजे, साहब ने तो उसी दिन कहा कि मेरे दरवाजे तो खुले हैं। जब बीजेपी आती है, बीजेपी के लीडर्स आते हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के लीडर्स वहां पर मिलने जाते हैं, तो उनको अगर आना है तो आएंगे वो। Well, I hope it happens. That would be a lovely day. That would really be a wonderful day. जिस दिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी साथ मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टियों का विलय हो, मैं ये कह रहा हूँ एमएनएस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे सेना इकट्ठे लड़ें। After all, if Congress and NCP can come together, for God's sake, if NCP and BJP can come together, why can't Raj Thackeray and Uddhav Thackeray come together? That would Exactly. be really wonderful. That would be really wonderful. Right? हेमंत कामले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। As usual, your analysis is usually very sharp and very, very incisive indeed. नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। And Thank वंदे you. मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Yes, वंदे मातरम। वंदे मातरम। I hope it happens. I hope it happens कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राम भरत मिलाप हो जाए, लेकिन फिलहाल तो उसके आसार दिख नहीं रहे। लेकिन एज हेमंत कामले जी सेड कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ऐसी बात है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। The impossible happens in the But do you really think what he said about the entire political space being occupied by NCP, Sharad Pawar and by Ajit Dada Pawar? I doubt it, very frankly speaking. I don't know. That's what Mr. Hemant Kamble thinks, and Mr. Hemant Kamble must be having his own sources and everything else. But I see a swing of OBC votes towards this Ajit Pawar and BJP alliance, sir. Very, very frankly, because Bhujbal, Mr. Bhujbal Sahab is a massive leader, mass leader. He's got a fantastic reputation among the OBC community. Similarly, Mr. Thackeray has a fantastic goodwill among the OBC community. And this votes doesn't belong to any party. It belongs to leaders. And I think BJP has done a master stroke, because if you take the survey now, and Mr. Hemant ji also agrees with us, that 40 का equation तो चला गया, it will be 50-50, around 50% somewhere. अगर हो जाए तो जबरदस्त है. So जबरदस्त. then it will be a master stroke for the BJP, but it could also backfire. Depends entirely on what the Congress does, by the way. अब क्या है कि सारी भागदौड़ जो है अब असल में कांग्रेस के पास है कि आगे कांग्रेस कैसे चलती है. And as far as Mr. उद्धव ठाकरे is concerned, एक चीज याद रख लीजिए, ये बार बार हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवसेना के नेता गए हैं, शिवसैनिक नहीं गए हैं. और जैसा अब ये भी हेमंत कामले जी ने कहा कि जो शिवसेना का काडर है, इट इज वेटिंग फॉर अ लोकल लीडर. अगर वो लोकल लीडरशिप एस्टैब्लिश कर लेती है शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, तो आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बहुत तकलीफ होने वाली है. Now I don't know if Mr. Karkanis is with us. Is Mr. Karkanis with us? Yes. Do we have him? Yes, wonderful. Karkanis साहब नमस्कार. नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. नंबियाल जी नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार काकानी साहब, नमस्कार. श्लोक से शुरू काकानी साहब को एकदम श्लोक तो ऐसे धड़ 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 याद जी. रॉकेट जैसे. तो आज क्या कहेंगे सर? आज तो बताएं. आज मैं आपको एक महाराष्ट्र की राजनीति का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. जी बताएं सर. 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का. जी. कोई बीजेपी का कार्यकर्ता एक गरीब आदमी, गरीब आदिवासी आदमी, भिखारी जैसा रोड के ऊपर बैठा है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता हाथ में सिगरेट लेके उसके शरीर के ऊपर पेशाब कर रहा है. जी. आज महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी ने ऐसी ही बनाई है. वो गरीब जो आदमी है उसके जगह पे महाराष्ट्र की जनता है, और बीजेपी महाराष्ट्र के जनता के ऊपर ये पॉलिटिकल पेशाब कर रही है कि जिसमें ये पूरी जनता त्रस्त हो गई है. सिर्फ महाराष्ट्र की जनता नहीं, बीजेपी का जो कैडर है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो भी त्रस्त हो गए. एंड एवरीबडी इज अनहैप्पी. किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति किसके लिए चल रही है. मैंने बहुत बार बताया है कि थोड़ा टाइम बारिश डिले हो जाएगा तो महाराष्ट्र में अकाल पड़ता है, महाराष्ट्र में बिजली की दिक्कत है, महाराष्ट्र में एजुकेशन की दिक्कत है,
और ये सब प्रॉब्लम नजरअंदाज करके ये महाराष्ट्र की जनता को गृहित धर के उसको एजम्पशन में लेके ये जो सब नाटक चल रहा है और ये नाटक बीजेपी कर रही है। उनकी स्क्रिप्ट जो एकनाथ शिंदे जी के लिए थी वही स्क्रिप्ट अभी अजित पवार जी के लिए है। सेम स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है और एक स्क्रिप्ट सक्सेसफुल हो गई, अभी ये दूसरी स्क्रिप्ट है। उनका एजेंडा यही है कि शिवसेना तोड़ो, एनसीपी तोड़ो, यहाँ पे जो लोकल पार्टियां हैं उनको तोड़ो और अपना झंडा फहराओ। लेकिन ये सब करने के बाद में भी भाजपा के जो लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी बताएं। हमारे यहाँ पे एक एमएलए है मिस्टर संजय केड़कर करके, उनका नाम लेके मैं बताना चाहता हूँ। वेरी डिसिप्लिन एमएलए भाजपा का है और अभी तक हार्डकोर वर्कर और भाजपा के लिए सालों साल काम कर रहा है। वो क्या सोचता होगा मन में, जिसके ऊपर आपने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, वही आदमी को आप डिप्यूटी सीएम बना रहे हैं और संजय केड़कर जैसा आदमी यहाँ पे सड़ रहा है, उनके तरफ आप देखते नहीं है। ये कहाँ की राजनीति है? इसमें सिर्फ शिवसेना या एनसीपी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है। और इसके लिए ये राजनीति बोलेगा तो एंटायर महाराष्ट्र के ऊपर पेशाब करना ऐसा ही है। ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया कि वो भिखारी के ऊपर, जो आदिवासी के ऊपर एक नशे में धुंध होके सिगरेट पी के पेशाब कर रहा है, वो जो वायरल हो रहा है वीडियो, वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारी राजनीति उस तरफ ही जा रही है। कारखानी साहब, ये जो गतिविधि हुआ जिसमें अजित पवार सबको लेके बाहर निकला, एनसीपी टूट गया, तो हाउ यू सी, बिकॉज कुछ महीने पहले जब सर्वे लिया था तो ये क्लियर कट था कि एमवीए विल गेट मोर देन 40 आउट ऑफ 48 लोकसभा सीट्स, मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट स्वीप था एमवीए का। आज जिस प्रकार से भुजबल साहब जैसे दिग्गज नेता जो ओबीसी समाज में जबरदस्त रेपुटेशन है, सुनील तटकरे जी है जो ओबीसी समाज में अच्छा रेपुटेशन है, तो आपको लगता है कि ये वोट स्विंग इस तरफ हो गया, अजित पवार, देव फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, जो अभी वो 40 आउट ऑफ 48 नहीं होगा, कभी 50-50 हो गया होगा, तो वोट शेयर गया होगा। भुजबल साहब इस तरफ आए तो ओबीसी वोट शेयर इस तरफ आया होगा, तटकरे साहब इस तरफ आए तो ओबीसी। तो हाउ डू यू सी इट, अभी वो वोट शेयर किस तरफ स्विंग आपको लग रहा है कि पुराना ठीक है कि अभी चेंज हो गया बहुत सारे? देखो, वोट शेयर के लिए मैं इतना ही बता सकता हूं कि ब्रिटिश लोगों को हम लोग दोष देते थे कि उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल ऐसी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, मतलब उनका तो शीर्षस्थ नेतृत्व है, टॉप लीडर्स है उनकी पॉलिसी तो डिवाइड एंड रूल से भी गई गुजरी है। उन्होंने ना सिर्फ जाति को तोड़ा है, ना धर्म को तोड़ा है, ना पार्टी को तोड़ा है, मानव में भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया। इसके लिए ये एनसीपी और शिवसेना और ये सब पार्टी की बात है ना, ये पार्टी की बात मुझे तो लगता है ये तो एक खेल खेल रही है। उनका एजेंडा फिक्स है और ये एजेंडा लेके वो लोग चल रहे हैं ना, और इसके लिए चल रहे हैं कि उनको पूरे देश के ऊपर एक ऐसी स्थिति पैदा करने की है कि वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, मतलब संघ और उनका जो नेतृत्व है, उसके सिवाय यहाँ पे कोई राज न करे। और इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो लोकल पार्टी है उसको भंग करने का, उसको खत्म करने का ये सब राजनीति चल रही है। ये जो शरद पवार, एकनाथ शिंदे वगैरह उनके हाथ के प्यादे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये शरद पवार जी ने ये सब करवाया है। ये बात मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये तो सेम स्क्रिप्ट है जो एकनाथ शिंदे जी के लिए भी सेम हो गया, वही स्क्रिप्ट है। खाली यहाँ से सूरत, बाद में गुवाहाटी, बाद में गोवा, ये सब नाटक नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अजित पवार जी बोलते हैं
कि शरद पवार जी मेरे पिता की जगह पे है और मैं उनका मानता हूं और मैं उनको बहुत मान देता हूं और उनका फोटो मत निकालो, या अजित पवार भी बोल रहे हैं सेम स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट में कुछ फर्क नहीं। वही लोग जो एमएलए गए हैं, छगन भुजबल जैसा आदमी जो जेल में था महाराष्ट्र सदन के घोटाले में, और बाकी के उसके जो कुछ कंपनियां के घोटाले थे उसमें वो जेल में था, वही आदमी को किरीट सोमैया जैसे आदमी ढोल बजा के उसके बारे में एक शंखनाद कर रहे थे कि देखो ये बहुत भ्रष्टाचारी है। आज वही उनके पार्टी का एक मिनिस्टर करके उसने शपथ लिया 2 दिन पहले। तो ये सब क्या चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है, मतलब उनके नेतृत्व का जो खेल है, ये जनता को पसंद नहीं है। और जनता के बारे में जाके हम लोग जब ये बात करते हैं, उनका ओपिनियन हम लोग लेते हैं, तो सब लोग एक्सप्रेस करते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सालों साल हम लोग भाजपा का काम कर रहे हैं, लेकिन आज का भाजपा हमें मंजूर नहीं है। कारखाने साहब, तो इससे उद्धव ठाकरे जी के ऊपर और उद्धव ठाकरे सेना जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जरा बताएं। देखो, उद्धव जी जो तरीके से काम कर रहे हैं जी, उद्धव जी ने 3-4 साल पहले जब ही इनके साथ में संबंध तोड़ा और अपना अलग पार्टी से काम करने का चालू कर दिया, वो चीफ मिनिस्टर हो गए, तभी उसने डिसीजन लिया था कि इनकी विचारधारा वो बहुत सेल्फिश विचारधारा है। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि वर्चस्व की विचारधारा में बाकी लोगों को कुचल के डालने का और मैं बड़ा, मैं महान, मैं कुछ कर सकता हूं, ये दुनिया को दिखाने का और दुनिया के ऊपर राज करने का, भले खुद राज करो या अपने हस्तक के द्वारा या राज करो, लेकिन दुनिया अपने मुट्ठी में लेके राज करने का, यही उनका मकसद है। इसके लिए उद्धव जी ने जो डिसीजन लिया वो 100% सही है। और ये जो विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही है, भले उनकी अलग अलग विचारधारा होने दो, लेकिन उनको अभी महसूस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का और संघ का ये खेल राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। आज वो संघ का जो वर्कर है, क्या नाम उनका, सांगली का जो भिड़े करके, मनोहर भिड़े, वो जो वर्कर है उसने तो खुलेआम इंटरव्यू देके बोला है कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला, वो 15 अगस्त को हम काला दिन करके मनाएंगे। 15 अगस्त हमारे लिए काला दिन है, हमको स्वराज्य नहीं मिला। ऐसे अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ये सोच के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। हजारों करोड़ों हुतात्मा लोगों ने अपनी प्राण की आहुति देके ये देश को आजाद किया, लेकिन अगर बोल रहे हैं, क्योंकि देखो स्वतंत्रता संग्राम में संघ का कोई हिस्सा नहीं था, संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था। इसके लिए उनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता है, उनको ये सब संग्राम गलत लगता है, यही उनकी सोच है। इसके लिए ये सोच को हमको कुचल डालना है, भारत से ये सोच निकालना है। और पुष्यमित्र शुंग से जो सोच यहाँ पे ये देश में आ गई है, ये सोच को हमें बदलना है। इसके लिए बहुत अच्छा हो गया कि अजित पवार का किस्सा हो गया। अभी संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको मालूम पड़ गया कि ये विचारधारा क्या है। करकानी साहब, जिस प्रकार से अभी विनायक राव जी ने कहा कि लगता है कि हम लोगों को अकेला ही लड़ना पड़ेगा, इससे पहले जब वेणुगोपाल जी यहाँ पर आए थे तो उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला कि मीटिंग के बाद कि लगता है कि हमको अकेला ही जाना पड़ेगा। तो ये अकेला जाना पड़ेगा, तो ये एक सब जितने उद्धव सेना के बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबका कहना है कि घूम फिर के आखिरकार हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। अभी हाल ही में आज ही वेणुगोपाल जी ने प्रकाश अंबेडकर को फोन किया और प्रकाश अंबेडकर से राय मांगा कि शायद फोन तो इसीलिए किया अलायंस में आना चाहते हैं, नहीं चाहते। तो
इस कांग्रेस कंसोलिडेशन जिस प्रकार से चल रहा है, कांग्रेस महिला, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सबको कैसे भी करके कंसोलिडेट करके अपना वोट शेयर पूरे देश पैन इंडिया में बढ़ा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो वेणुगोपाल जी प्रकाश अंबेडकर जी को फोन किए, आपको लगता है कि घूम फिर के यही जो उद्धव ठाकरे साहब ने पहले ही बोला कि हमें, मुझे लगता है कि अकेले ही करना पड़ेगा, ये कोई सच्चाई में तब्दील हो रहा है सर? खड़गड़े साहब, देखो अगर उद्धव जी बोलते हैं कि हमें ये पार्टी के साथ में, मतलब ये विचार के साथ में अकेला लड़ना पड़ेगा, इसका मतलब अगर हमारे साथ में कोई आए या ना आए, हम लोग इनके साथ में लड़ेगा, ये इरादा उन्होंने पक्का किया है। अगर बाकी लोगों को भी जरूरत है, बाकी लोगों को अगर लगता है कि ऐसे लोगों के साथ में हमें लड़ना पड़ेगा, तो हमारे साथ में वो आ जाए। कांग्रेस तो आ सकती है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस नहीं आएगी कभी। हाँ, जगह के लिए किधर किधर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई जगह के लिए नहीं है। ये लड़ाई कौन सत्ता में आएगा इसके लिए नहीं है। ये लड़ाई किसको क्या सीट मिलेगा, कितना सीट मिलेगा उसके लिए नहीं है। ये लड़ाई इसके लिए है कि एक विचार के साथ में हमें लड़ना है, और ये विचार है, ये विचार भारत के जनता के मन से बाहर निकाल के फेंकना है। इसके लिए सब लोगों को साथ में आना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस रहेगी आपके साथ? मतलब जिस प्रकार कांग्रेस बढ़ रही है अभी, कांग्रेस को हर जगह से रिपोर्ट आ रही हैं, सर्वेक्षण आ रहे हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है, कांग्रेस का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। भले वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक में तो जीत गए ना सर, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश दोनों जगह जीत गए। तो क्या कांग्रेस का जो पुराना अहंकार है वापस आ गया है? क्या कांग्रेस के साथ अब डील कर पाएंगे या नहीं सर? देखो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक तो मालूम पड़ गया, जब ये भारत जोड़ो यात्रा हो गई जी, और राहुल गांधी जब इन लोगों को मिलने लगे, तभी एक तो हो गया कि कांग्रेस ने अपना अहंकार बीच में जो आ गया था, वो अहंकार छोड़ दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है। कांग्रेस अभी अहंकारी है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस को महसूस हो गया कि अगर इनके साथ में लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मुझे तो लगता नहीं, और एनसीपी के बारे में भी मैं इतना बोल सकता हूं कि शरद पवार जी भी हमारे साथ में है। उनकी पार्टी अगर स्प्लिट हो गई तो क्या हो गया, शरद पवार जी जैसा एक बड़ा नेता हमारे साथ में है, सुप्रिया सुळे है, और उनके साथ में उनके असंख्य कार्यकर्ता है, तो मतलब ये एक बड़ा कारवा हो रहा है। महाराष्ट्र में ये 3 पार्टियां है, प्रकाश अंबेडकर है, और ये बाद में संभाजी ब्रिगेड है, मराठा महासंघ है। ये सब लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि ये लीडर को मालूम पड़ गया है कि इनके साथ में अगर लड़ना है तो हमको कंधे को कंधा लगा के लड़ना पड़ेगा। इसके लिए उद्धव जी ने जो बताया है कि अगर आप हमारे साथ में आएगा तो आपके साथ में, अगर आप हमारे साथ में नहीं आएंगे तो हम अकेले, लेकिन ये शक्ति के साथ में हम लोग लड़ेंगे जरूर। एक आत्मविश्वास उद्धव जी ने अपने शिव सैनिक को दिया है। खड़गड़े साहब, उद्धव ठाकरे साहब ने पहले भी बोला था कि हम सबको एक साथ जुड़ना है, नहीं तो 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर, एक ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन तरीके से पूरे देश को चलाएगा। और आज केजरीवाल जी भी वही बोल रहे। देखो, महाराष्ट्र में अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन, मुंबई में करीब 1-1.5 साल हो गया, नवी मुंबई में 4 साल के ऊपर हो गए, ठाणे में भी उतने 2-3 साल। तो लोकल बॉडीज, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी उठा दिया कि आप लोकतंत्र खतरे में है, बिकॉज मोदी जी और गवर्नर्स और एलजी मिलकर पूरे देश चलाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है। फिर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु खुद एक मिनिस्टर को वहां से डिसमिस करने का कोशिश कर रहा है तमिलनाडु में, स्टालिन गवर्नमेंट का। तो एक दो ऑर्डिनेंस, दिल्ली में ऑर्डिनेंस लेके आता है कि केजरीवाल जी का पावर्स को लिमिटेड कर ले।
तो ये टोटालिटेरियन उद्धव जी जो कहा था कि ऑलरेडी सच्चाई में तब्दील धीरे धीरे होने लगा, आपको लग रहा है कि और 2024 में सब एक साथ आके नहीं लड़े तो टोटल डिक्टेटरशिप पूरे देश में होगा? कैसे देखते हो आप खड़गड़े साहब? ये तो सब लोगों ने मान लिया है। कोई स्टेट छोड़ के जो सोशल मीडिया से बहुत भ्रमित हो गए हैं, वो स्टेट छोड़ के बाकी सब लोग अभी ये मानना चालू कर दिया है। देखो साउथ में तो ये लोगों के साथ में कोई जाएगा नहीं। साउथ लोगों का विचार ही अलग है, उनकी जो अस्मिता है वो अस्मिता अलग है। केरल, तमिलनाडु, ये सब प्रदेश है, उनकी प्रादेशिक अस्मिता बहुत ज्वाज्वल है, उनको ये सब मंजूर नहीं है। तो ये उत्तर की पॉलिटिक्स के तरफ ये लोग जाने वाले नहीं हैं, और इसके लिए ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बाकी का जो प्रदेश है नॉर्थ का, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए सब लोग तैयार है। अभी जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत ईगर है, उनको भी यही चाहिए कि चुनाव लगे और चुनाव में हम ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। सब लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, लेकिन ये लोगों को जो इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन मिला है आईबी से और गुप्तहेर जो उनका ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे पास से जो इंफॉर्मेशन मिला है, तो वो इंफॉर्मेशन के अनुसार ये जो समय है वो चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है करके ये लोग चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन कितना टालेंगे? जितना टालेंगे उतनी उनके पास से गलतियां हो जाएगी और हारने का डर उनको ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कारखाने साहब ये बताएं, आज की तारीख में जिस प्रकार ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, आधिकारिक तौर पे मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, अंदरूनी बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बेचारा, इतने सालों से जो संघ का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी में काम कर रहा है, वो किस प्रकार इसका स्पष्टीकरण दे रहा होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आधिकारिक तौर पे बीजेपी ने तो ये साबित कर दिया कि हमने एमबीए को तोड़ दिया है, महा विकास अघाड़ी अब टूट चुकी है। आपको क्या अभी भी लगता है कि उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ जितने भी लोग हैं, क्या आप सब लोग और साथ में प्रकाश अंबेडकर जी, क्या आप सब लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी, अजीत दादा पवार की एनसीपी और शिंदे साहब की सेना, इसको परास्त कर सकते हैं? सर जरूर कर सकते, जरूर कर सकते। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, उनके जो लोकल लीडर है, वही लोकल लीडर उनके ऊपर नाराज है कि ये सब सत्तांतर के खेल से उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला, वो तो तरस रहे हैं, उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा उनके शीर्षस्थ नेतृत्व को शायद हो गया होगा कि उन्होंने 2 पार्टियां तोड़ी, यही समाधान उनको शायद मिल गया होगा। लेकिन उनके पार्टी को यह समाधान नहीं है। पार्टी बोलेगा तो उनके जो कार्यकर्ता है उनको ये समाधान नहीं है। सब लोग नाराज है। हम जो कार्यकर्ता के साथ बात करते हैं वो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सर्वसामान्य जनता तो बात ही कर रही है कि ये सब गलत हो रहा है करके। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, अभी देखो सोशल मीडिया के ऊपर उनके कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सब लोग चुप है। ये चुप इसके लिए है उनका मोरल डाउन किया गया है। तो एक नाथ शिंदे जी का क्या होने वाला है सर इसमें तो अब शिंदे साहब के पास जो भी बार्गेनिंग पावर थी वो तो खत्म हो गई। तो अजीत दादा पवार के 30 लोग आ गए इधर। बार्गेनिंग पावर सिर्फ खत्म नहीं होगी, उनका जो एरोगेंसी था, उनके लोगों का जो एरोगेंसी था, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी उनके ऊपर नाराज है। और इसके लिए उनको साइड ट्रैक करने के लिए ये जो 2 दिन पहले का जो नाटक हो गया वो नाटक किया है जी। लेकिन उसका स्क्रिप्ट जैसा एक नाथ शिंदे जी का स्क्रिप्ट 2-3 साल पहले से लिखा हुआ था, वैसा ये स्क्रिप्ट भी एक नाथ शिंदे का जो उनका जो काम है, उन्होंने जो ये किया, उसको क्या बोलते हैं कि सत्ता
संघर्ष किया, वो देखने के बाद उनको एक ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये चल सकता है, ये मॉडल चल सकता है। इसके लिए सेम स्क्रिप्ट वो लोग अपना रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता उनके ऊपर नाराज है। कारखाने उनके खुद के लोग नाराज हैं। कारखाने साहब, एकनाथ शिंदे साहब ने जब उद्धव ठाकरे जी को छोड़ा तो उनकी तरफ से ये वक्तव्य आता था और आता रहा है कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के खिलाफ गए उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा, ये भी कहा गया। इनफैक्ट ये बात तो अमित शाह जी ने कही कि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ अगर अलायंस करनी पड़ गई तो मैं अपनी शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। अब तो एनसीपी तो कांग्रेस ही है ना एक तरीके से, तो वो अब हिंदुत्व कहां गया? अब अजीत दादा पवार हिंदुत्ववादी बन गए सर। वही तो मैं बताना चाहता हूं, ये कहाँ का उनका हिंदुत्व है? एनसीपी के साथ में शिवसेना गई करके एकनाथ शिंदे जी का जो गुट था उन्होंने शिवसेना को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए, लेकिन अभी एनसीपी उनके साथ में आ गई, तो अभी वो क्या भारतीय जनता पार्टी को वापस छोड़ने वाले हैं क्या? आपको लगता है छोड़ना चाहिए? आपको लगता है छोड़ना चाहिए? छोड़ के फायदा क्या है? अभी उनकी मजबूरी है, अभी ना उनको वो छोड़ सकते हैं ना उनको पकड़ सकते हैं। उनकी हालत तो बहुत खराब हो गई और इसके लिए वो लोग सब भ्रमित है, उनसे उनके लोग ज्यादा भ्रमित है। उनके जो मिनिस्टर है, देखो जो शपथ विधि का प्रोग्राम चल रहा था टीवी के ऊपर, हम सब लोग देख रहे थे, तभी उनका बॉडी लैंग्वेज अब अगर आप देखते तो मालूम पड़ता था एक के चेहरे पर भी रौनक नहीं थी। अगर उनकी सरकार मजबूत हो रही है तो सब लोग हंसना चाहिए, लेकिन कोई भी हंस नहीं रहा था। जैसा ये जो भारतीय जनता पार्टी के पाटिल है, वो पाटिल ने बोला था कि हमने ये जो निर्णय लिया एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो छाती के ऊपर पत्थर रख के हमने निर्णय लिया है। वो जो उनका स्टेटमेंट पहले ही आया था, सेम स्टेटमेंट अभी ये शिंदे गुट के लोग कर रहे हैं, सेम टाइप का स्टेटमेंट। उनको भी अभी तो ऐसा बात कर रहे हैं कि हमको आधी भाकरी मिल रही थी, अभी शायद वो क्वार्टर भाकरी मिलेगी, हमको जो मिलेगा वो हम ले लेंगे। ये क्या है? ये उनकी हार है और उनकी हार उनको समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष को जैसा तोड़ा वैसा ही शिंदे गुट को उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि अगर वो असली हिंदुत्ववादी हैं तो शिंदे साहब को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए? मतलब उनको तो अलग से बैठना चाहिए कि भाई मैं खुद बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी हूं, मैं अपनी पार्टी अलग चलाऊंगा शिवसेना। सर अगर सच्चा हिंदुत्ववादी है, अगर वो प्रिंसिपल को जानते हैं तो तुरंत इस्तीफा देके वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो निकलेंगे नहीं। वो क्यों नहीं निकलेंगे? ये सब लोग ईडी इनकम टैक्स के डर के वजह से उधर गए हैं। उनको हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, उनको देश के प्रति कुछ लगाव नहीं है, उनको महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ नहीं लगता। ये डेवलपमेंट का बात करते हैं और हम प्रगति की ओर चलना चाहते हैं, ये सब आई वॉश है, इससे उनका कुछ लेना देना नहीं। उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि मैंने जो कमाया है वो हमको प्रिजर्व करके रखने का है, मतलब गंवाना नहीं है, जेल में बचाना है, गंवाना नहीं। हाँ, बचाना है, गंवाना नहीं, और हमें जेल में नहीं जाना है। जी दुरुस्त बात है। राइट कारखाने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों के बाद, बिल्कुल इतने दिनों के बाद मैंने सुना था सर आपकी तबीयत बड़ी खराब थी, अब ठीक है आप? बिल्कुल हाँ, बहुत खराब थी। मेरा इन्वेस्टिगेशन चालू था, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू था करके मैं बहुत रेस्ट ले रहा था, मैं किधर बाहर भी नहीं जा रहा था। अभी धीरे धीरे वापस लाइन पे आ गई।
जबरदस्त ये मेरी सर। तबीयत का कारण मेरा एज है। मैं बाजार से लास्ट टाइम बोला था, पॉलिटिक्स से इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा दिमाग ये पॉलिटिक्स में हम लोग ज्यादा खराब करना नहीं चाहते। नाउ अभी तो हम लोग पॉलिटिक्स एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, हमें पॉलिटिक्स से कोई तकलीफ अभी नहीं होती है, वंडरफुल। जैसा आपको नहीं होती है पॉलिटिक्स से तकलीफ, और आप भी पॉलिटिक्स एंजॉय करके लोगों को बोलने के लिए मजबूर करते हैं, वैसे हम भी ये पॉलिटिक्स अभी एंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल सर। अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है तो इसका मतलब उद्धव ठाकरे सेना की भी तबीयत ठीक हो रही है, लगे सर। जरूर, उनके तबीयत को कुछ नहीं होने वाला है। वंडरफुल सर, वंडरफुल My टॉकिंग party टू is यू। always fit and fine. यस सर, वंडरफुल वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, Thank you very much. जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय शिवाजी। थैंक यू सर। Right. So we have opposing points of view. Yes. The eminence thinks, of course, that this is all scripted. Mr. Karkhanis says it is not scripted. Raju Vagbane Saab says it is not scripted. This time it is not. And I personally tend to agree that this one is not scripted. I don't think Mr. Sharad Pawar could have taken such a big risk, because this can really backfire if indeed it is scripted. At this point of his time, I mean, I don't think so. The evening of his life, I don't think he'd do something to damage his own reputation. I don't think so either. And for Ajit Dada Pawar to speak out so frankly and furiously, most importantly, furiously and angrily, my God, that was something. He started from 2004 when he was Yes. denied the chief ministership, and how Kaka has been unfair to him, unfair to see his progress. He never wanted to progress, and he went to the extent saying that because I'm not from the same. कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ इसलिए। Yes, exactly. मतलब वैसे मुझे बेटा मानते हो लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ इसलिए। Yes. मतलब for him to say that, and then for Chhagan Bhujbal to say whatever. Oh God, I don't think this is scripted. Bhujbal was 2 steps ahead when he used abusive terms also. I've never seen Bhujbal using abusive terms in a political rally. In a public meeting. Yes, yes. Never. And Mr. Praful Patel, of course, is Mr. Praful Patel. And Praful Patel gave a threat that I know a lot of things. If I come out with an autobiography, Which he does. Which he does. you have a lot to answer. That's what he probably was telling Mr. Sharad Charan. And at the moment, Mr. Praful Patel has protection. Let's be very clear. Sir, what I foresee is with this might of money power, political clout, and muscle power, I don't think the 16 people with Sharad Pawar will remain for a long Oh, time. no. I don't think so. I don't. It's just a matter of few facts. Fact that a day, 2-3 will go on breaking. We'll see probably a political drama over the next 10 days. No, Pradeep ji, it's not just 16. It's actually the number of people really with Ajit Dada Pawar is somewhere near 40. Let's be very clear. Exactly, sir. 40 लोग अभी हैं असल में। Yes, yes, yes. और ये जो 15-16 हैं, there is a possibility. I mean, of course, I'm sure Mr. Anil Deshmukh will stop talking to me if I say that. But I even foresee that even Mr. Deshmukh will have to reconsider his position. कि भाई वो उधर रहेंगे या इधर आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी इधर ही आ जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। Anybody sensible will come this side. Perhaps the only person who will remain on that side right till the end will be our friend Mr. Jitendra Awad. Yes. और Jitendra Awad साहब, अब पवार साहब के साथ कितनी देर रहते हैं मुझे मालूम नहीं है। But as we have discussed it right over here so many times, Mr. Jitendra Awad would be better off in the Congress. Exactly. मुझको ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस में जाना चाहिए। But he's a far wiser man. I mean, he's in politics, I'm not, and he's the man who knows what he has to face on the ground. However, if Sharad Pawar Sahab is going to make a fight out of it, अगर शरद पवार साहब इसमें जंग लड़ने को तैयार हैं, एक-एक गांव में जाने को तैयार हैं, then things will really get very interesting, Pradeep ji. फिर असल में Substitute local leadership is going to be a different task, very difficult task. We saw Mr. Kamble telling about same thing with SENA. You may have a good reputation among the people, but you need a local leadership to flower that. I mean, to let it bloom. But how is you go within 6 months or 1 month groom another leadership in all these 288 constituencies? It's going to be tough, sir. And That's especially right. when you got money power here, you got Unlimited money. political cloud, money power, enforcement agencies, central agencies. And now that they're in government, oh God, this is going to be
But it will be very interesting. However, as Mr. Raju Wagmare said, Mr. Modi is very happy and the Congress is very happy. लेकिन कांग्रेस, you know what I think, जो प्रदीप जी हम लोग बात कर रहे थे, sometimes the fates intervene, sometimes destiny intervenes. तो कांग्रेस के लिए हर चीज is falling into place कि भाई बीजेपी चलिए रूलिंग पार्टी रहेगी, मेन ऑपोजिशन पार्टी विल बी कांग्रेस पार्टी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर में हर चीज जो हो रही है, इट इज फॉलोइंग इनटू प्लेस फॉर द कांग्रेस. आप देखिए ना, हर जगह पर राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनको बहुत उपलब्धियां मिल रही हैं, लोग आ रहे हैं उनके पास, चुनाव जीत रहे हैं, मतलब जबरदस्त हो रहा है एक एक चीज. और यहाँ महाराष्ट्र में भी जो अभी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बढ़ावा मिला है साहब. And Congress is, things are falling also, but they are working very hard to achieve it. They have a definite plan. Now, if you see the small minor things that we observed, Venugopal in all this crisis calling up Prakash Ambedkar, when he knows very much that Prakash Ambedkar is in touch with Uddhav Thackeray, and they already worked out such a lot of meetings, they had so many meetings about how to get together, and Congress is leaving no stone. Now, this hard work and this organization, rank and file, coming together, moving together in one particular direction with goals, then things fall. And मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब प्रदीप जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आखिर में कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी महाराष्ट्र में. मुझे तो ऐसा लग रहा है. It seems to be that. और उद्धव ठाकरे जी अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेली लड़ेगी, और ये जो तीन पार्टियों की सरकार है हो सकता है कि इकट्ठे लड़े. बट व्हाट हेमंत कांबले सेड अबाउट द विधानसभा इज समथिंग आई एग्री विद. उन्होंने ये कहा प्रदीप जी, मेरे डिस्टिंक्शन, दैट दिस इज बीइंग डन फॉर द लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा 2024 इलेक्शंस के लिए सब हो रहा है, विधानसभा के लिए पॉलिटिकल इक्वेशन अलग होंगी. आज की तारीख में जो एनसीपी इस तरफ गई है, एनसीपी, बीजेपी और शिंदे सेना, ये तीनों लोग अभी लोकसभा 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. विधानसभा के लिए कुछ और ही होगा. Rohit Pawar might be a very junior leader, but his forcing, we saw the movements of the election commission, the voting ballot, so electronic machines. So he was saying that these things signify that elections are somewhere around this year itself, and both the elections, because things are falling in place for the BJP, will be held together. The central and the so that Pradeep ji, that is a double-edged sword. That really is a double-edged sword. You know about what happened in the Shining India campaign. Exactly. Now, if the elections are held together, they might win both or they might lose both. Exactly. Then what happens? Yes. Then everybody is in real trouble, because it is also true, by the way, that the BJP rank and file is confused. What do? Because till just the other day, they were all abusing Ajit Dada Pawar. Scamster, scoundrel, chor, 70,000 crore ka scam, and so on and so forth. Now, he is their deputy CM. Sir, the BJP rank and file, what I believe they are just one with Modi. Whatever he decides is final for them. Because it's like, it's ingrained in their mind that whatever Mr. Modi does is for the betterment of the country and betterment of the state. Well, it is for the betterment of the country, on that I have no exactly. And this is well ingrained in every BJP Karyakarta, you can say, or the RSS Karyakarta, whatever the other parties but trying to foster disagreement over there. प्रदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. जो संघ का कार्यकर्ता है, जो संघ का बेचारा कार्यकर्ता जो है, जो पहले से संघ में है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, वो आपकी बात, जो आपने बात कही है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा. लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में बहुत नए लोग भी आ गए ना सर, अलग अलग जगह से आ गए ना. आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी तो पहचान ही नहीं जाती है कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, कौन है ये. मतलब आप देखिए ना, देवेंद्र फडणवीस जी के आसपास जितने भी लोग हैं, पुराने कांग्रेस के लोग हैं. मतलब आज भी एक भी there is not one dissent within the entire BJP. Forget Maharashtra, the entire country. It's all what one Mr. Modi says, aisa karna hai, the whole rank and file are one. You never heard dissent, or you never heard people moving out or defections or something. Nothing happens in the BJP. It has never happened anywhere in the BJP after Mr. Modi has taken over. So wait, it hasn't happened even earlier, Pradeep ji. कहाँ हुआ? जब इनके पास 2 सीट थी, आप देखें, when BJP came back with just 2 seats in 1984, तब भी कौन से लोग बीजेपी को तोड़ करके कांग्रेस में चले गए? कोई नहीं गया साहब. भारतीय जनता पार्टी, एक चीज उनके बारे में कहना पड़ेगा, और बड़ी प्रशंसनीय चीज है ये,
भारतीय जनता पार्टी तोड़ के कोई जाता नहीं है साहब, बहुत कम होता है। एक बार भारतीय जनसंघ से मदन लाल खुराना जी बाहर गए थे, फिर वापस आ गए, गलती से गए थे एक बार कांग्रेस में, थोड़ी देर के लिए थे, वापस आ गए, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि BS येडियुरप्पा साहब को देख लीजिए, येडियुरप्पा साहब गुस्से में कोप गृह में बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन रहेंगे बीजेपी में, जाने वाले नहीं है। तो इस किस्म की लॉयल्टी और इस किस्म के काडर सिर्फ बीजेपी के पास है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में तो ऐसा है साहब, बहुत लोग गए, बहुत लोग आए, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। कांग्रेस तो खुला घर है, कांग्रेस तो बहती गंगा है साहब, जो भी आए गंगा स्नान कर ले। अब गंगा का पानी उस वक्त ठंडा है, गर्म है, बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, नहीं है, वो आपकी किस्मत है। एंड दैट्स हाउ द कांग्रेस हैज सर्वाइव्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। So as we have been saying right here on this channel, on this show, प्रदीप जी और मैं ये बार बार कह रहे हैं, आखिर में 2024 में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ये होने वाला है साहब, यही होने वाला है। प्रदीप जी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताएं। No, frankly, right now it looks very favoring BJP. But Rahul Gandhi, if he works out the way he's been working, then it's going to be a close fight. Sir, BJP is going to win. On that there is no doubt. भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस, इस बार जो उनकी 54 सीटें आई थी, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था, 100 और 150 के बीच में वो सीटें लेकर के आएंगे। एंड द मेन पीपल हु विल सफर विल बी द रीजनल पार्टीज। उनके जो रीजनल पार्टीज में उनके जो आसपास जितने भी इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, दे विल बी द वंस टू सफर। बिकॉज आप देखें, पूरा मुस्लिम वोट जो है, आप आज ये कह भी दें कि मैरिज लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई मानने वाला नहीं है, कोई आपको मानने वाला नहीं है साहब। पूरा मुस्लिम वोट जो है वो पूरा का पूरा आएगा ही कांग्रेस की तरफ। बहुत बड़ा शेड्यूल कास्ट वोट जो है कांग्रेस की तरफ आएगा ही, शेड्यूल ट्राइब वोट जो है वो आएगा ही। अभी जिसका जिक्र किया अभी अपने कारखाने साहब ने, जो इंसिडेंट हुआ मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी के ऊपर यूरिनेट करना, एक भारतीय जनता पार्टी का शख्स जो भी कर रहा था, ये तो तस्वीर हर जगह में दिखाई जाएगी, ये है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग दिखाएंगे। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट और मुस्लिम वोट बहुत आने वाला है इस तरफ। हाँ, जहाँ तक ओबीसीज का सवाल है, ओबीसीज, एंड दैट्स अ ह्यूज वोट बैंक बाय द वे, दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स द बीजेपी। तो बीजेपी के कौन वोटर हैं साहब? ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, और उसके बाद ओबीसी में जो मेजॉरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाली है, एंड दे विल ब्रिंग the BJP back to power. That is bound to happen. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। हाँ, चलते चलते ये भी बता दें आपको, आप प्लीज़ अपने कमेंट भेजें। प्लीज़ सेंड योर कमेंट्स as many as you like, make them as colorful as you want. I'll try to read them out, but no violence, please. We draw a line on violence. You cannot ask for, killing of somebody and stuff like that you can't do. But the rest goes. Whatever you want, please send it. We'll read it out of here. आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.